Welcome to all distinguished guests who have come, speakers, and our friends. We are about to start today's conference, which is on redevelopment of housing societies, which is the hot topic for the year and for years to come. So before that, I would like to just brief about what is our purpose and aim of today's event. Basically, is to educate everyone the whole process of redevelopment, how it is to be done, how you have to understand the title of your land, where do you stand in terms of that, what are the FSI available as per the land and road width or there. Then the whole process, since the societies come under the MCX Act, we have to follow the 79A guidelines, which is in fact for the betterment of all members also. Then the next is the feasibility of the project, how much FSI is available and how much you are entitled to get, how much the builder will get. But these are the basic foundations you should learn today, and we will try to make you understand in terms of that. If you attend this basic, if you understand the title, property card पे आपका नाम है कि नहीं, feasibility में आपको कितना मिल सकता है, what are the prevailing FSIs, because that ranges from 2 FSI to 12. Situation, whether it is in Mada land, which is in private land, it depends on the road width. So after you understand the feasibility, then we have to go through the 79A process, where the whole key is transparency and understanding. So जैसे कि Google पे तो आप सब मारेंगे तो सब मिल जाएगा 79A क्या है, ये क्या है. लेकिन what we want to try is the mindset which you should have in doing some good for your society. That is the stepping stone. If your mindset is there, I want to do something in life for someone. So if I am in the position of a managing committee or an authority, I should do everything possible to make them happy. So that is what we are going to focus in that. Then we have with us our esteemed Honorable Shri CA Tarun Giaji, who is an expert in real estate laws, documentation, taxes and GST. He is the first person who got an order from the High Court that there is no income tax in redevelopment of societies. So Tarun ji के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है. He is a member of the Council of Chartered Accountants. He is the person who goes to represent pre-budget sessions and seminars. And the list is long of his 50 years career. That in detail I will take it up when we take up his this. Then we have Maharashtra State Cooperative Bank, Shri Pradeep Zore, okay, who has promised us that he has come with the checkbook today to all those who want to give self-development. So big round for him also, and big round for Tarun Giaji also. And I would invite Tarun Giaji to please come to start off our Mr. Pradeep Zore ji, please. And I also welcome Mr. Dev Chomal, who is into the industry insurance. So during the day, he will enlighten us कि insurance redevelopment में कहाँ role play कर सकता है. That we have to understand. Like one of the policies that some members, just for the sake of doing litigation, go to the court. So society has to bear that cost irrespective of court में तो नहीं कह सकते हमको नहीं आने का है तुम्हारे दरबार में. So there is a provision, policies are there, where the society is covered with that cost of litigation cost. But detail he will explain. I welcome him on board. Please come. Yeah. So I request to give us a floral tribute. We will give first to Tarun Giaji. And a big round of applause for Tarun Giaji for guiding us. Shri Pradeep Zore, our finance man. Yeah. And Shri Dev Chomal. Yeah, thank you, sir. So friends, this is
the agenda we have made it possible, where first we'll have a session on the role of importance of PMC, why it is required, then what is feasibility, what is the 79A process, and what are the questions you can ask to a builder before deciding on a builder. So it's basically that. Then Sri Tarun Giaji will explain to us on real estate laws, income tax, especially on DA documentation. That is most important. Today, 5,000-6,000 projects are stalled because kahin pe documentation was not proper. The terms and conditions were not proper. So as an example, I would say that today when the builder has to hand over the flats, the saleable flats, जो आपका है, so he has to pay GST. But if it is not documented, तो वो बोलेगा पहले GST भरो फिर घर में आओ. So that is one of the finer points I learned from him, which we will take it up in his session. And then we'll have title पे deem conveyance. Okay, what is deem conveyance? Why are we entitled to that and how we should get it? Then we have on title property, what is the title of your land, how it is obtained, what is it obtained, कि सिर्फ प्रॉपर्टी कार्ड में मेरा नाम है तो मेरा टाइटल होगा क्या नहीं, 7/12 में नाम है तो क्या नहीं, where what all documents are required and all that we will understand. Then we'll take it up self redevelopment, because that is the topic where recently even the Maharashtra government has formed a committee to implement the September 2019 GR, which has lot of benefits for self-development. One simple was the 10% extra FSI over and above what you are entitled to, GST benefits and all are there. That will take up along with what is the scheme of funding self-development with Maharashtra State Bank and Mumbai Bank. So today we have Maharashtra State Bank. They are mandated by Reserve Bank of India to go ahead and give funding for the self-development of societies. Then we have green concepts which will explain what are the benefits of climate change and how we can encounter that. Then what is the future scenario, real estate and housing, keeping AI in mind, artificial intelligence is in mind. So we'll have a look at that. And then introduction of constructor-related insurance, Mr. Dev Chamal will be there. And we'll just understand recent court cases are there in terms of various issues are there. So this is the whole rundown through of the seminar. And then now we'll start with the first session. And I would request the dignitaries on board to please take their seat. Yeah. Thank you, sir. Photos are the fond memories we treasure. In terms of that, and as time goes, we'll see evolve how we are progressing in terms of our session, in terms of whether we are going on board or we are on track. Okay. So, basically, what I always say, हर एक का हो सपना, एक घर हो अपना. घर तो आज होगा, लेकिन उसका टाइटल है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कि नहीं. So these are the small issues जो आपका घर एक आशियाना हम जो कहते हैं वो बनता है, तो उससे हमें चेक रखना है. एंड हाउ वी कैन हैव इट अ सस्टेनेबल रीडेवलपमेंट. जैसे रीडेवलपमेंट होता है तो मेंटेनेंस आपका 1,000 रुपये का 4,000 भी हो जाएगा. तो देर आर ग्रीन मेजर्स व्हाट वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ सोलर वाटर हार्वेस्टिंग इज देयर, better planning is there, and how AI will help us in reducing that. We will understand that. So, friends, get involved. Each and everyone present over here can make a difference in the life of others, especially your society members and all that. And because change is inevitable to the new knowledge society, which will be developed from information, intelligence and insight, rather than physical power or natural resources. So knowledge, ज्ञान जितना आप लोगे, it is required and continuous lena hai. So if you are ready to lead, inspire, support, we go ahead. So takeaway of today's session, at the end of the day, this is what we presume we want to achieve that. Okay? So how to understand title of your society with deep conveyance, how to read, analyze feasibility report, how to follow 79 guidelines, 72 questions, how to avail funding, and last documentation by expert, Sri Tarun Giaji. So this is
what we aim at the end of the day, at least you will have some better knowledge in for going further. Today's response, if you see the attendance, okay? So this is breakup of who all are there. So there are managing committee members also there, 13.8 to 9.7, that is the managing committee and the office bearers. 36% are there. 13% are the professionals are there, architects are there, this rest is distributed, architects are there, PMCs are there, 13% are the advocates also there. So it is like everyone wants to learn, and but this is the situation of today are there, and we will try to give justice to everyone in terms of what is required for everyone, right? So I am Akbar Jivani, PMC. I am also registered with RERA. I am also a member on the Builders Association of India, because that is the key area of construction, which I always tell BAI, and how we can enhance that opportunity and which can reduce a lot of tensions to the societies if that part is taken care of. As a PMC, government certified, PMC is there. I am also being in Bandra since 69, and our MLA is Ashish Shelarji. We have formed a cell for housing society to give free legal advice to all the members in terms of whatever issues come arising out of the Maharashtra Cooperative Act. Okay. So I have done a course in AI also powered. We will try to show you live something on how AI can make a difference in your life and how it becomes very easy. Rather than, Google it, you can use this. So it will give you just insight where we are heading for and how it will help us. Yeah. So Tarun Giya ji is there. Our architect is also here, which is always there. And I would like to inform you that this year I was awarded the Best PMC Project Management Consultant Award for the year at the CIA Awards. So I just would like to share that. These are the trophies that I got. Then I regularly participate in municipal corporation. They have seminars in updating the systems and procedures, how they do, right? Okay, what are the new guidelines are there? Like the TODs come, transit-oriented development policies are there. That is there. And this is one-day workshop we had held in March, okay, where we cover all, everyone, because we teach in minute details. That is also a full-day course, but we try our best to give information and knowledge whatever we have, right? This is a certificate program was there. We awarded certificates to all, which we will distribute today to whoever are present over here. So this is the initiatives we take. Our housing minister and cabinet, urban development minister is our deputy CM Shindeji. So who is taking great efforts in promoting redevelopment and self-development and all that. So we keep in touch with that. So you see Mumbai City 2006, 2020 and 2025. So we are heading for a concrete jungle, we can say. But then that doesn't mean that we should be left out. हमारे लिए उसमें क्या है, मेरा बिल्डिंग है, उसको related मुझे क्या है. India is shining, India is growing. But what is there in store for me? What I have to do, what I have to suffer, how I have to make everyone to come to one mindset. That is the whole idea. Today I am also the project management consultant of one of Mumbai's largest cluster redevelopment of 53 societies together. It is a MHADA layout, okay, and span over 1,15,000 square meters of land. Already completed 40 buildings with 98.2% consent. So that is numbers game है, 51% मिलता है तो चलता है, 60% चलता है. लेकिन our aim is के सबको satisfy करना चाहिए in terms of they should be felt कि I was heard. मेरी बात तो सुना किसी ने. भले मैंने जवाब उसको दिया, उसको नहीं पसंद आया, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया वो हिसाब से. So similarly, I had been to Motilal Nagar representing the residents, which is a huge MHADA project spread over 143 acres. 15 साल कोर्ट में था, and now court has also said कि अभी go ahead for redevelopment, tendering हुआ था, Adani group was awarded and all that. So there is an issue of pro rata FSI, which I'll discuss why this issue is there. तो मुझे उनको यही समझाना है कि हमें
15 साल कोर्ट में लड़े, आधी जिंदगी तो चले गए, आधी भी बाकी है, उसके लिए कुछ करके हैव अ पॉजिटिव माइंड, दैट इज़ द होल आइडिया। सरकार है, हमारे को सुनती है, सुनने को चाहती है, तो हम आगे कैसा बढ़ सकते हैं। तो देयर आई एम ऑल्सो डूइंग इट, दैट इट वॉज हेल्थ ऑन 12th April, एंड दिस इज अ आर्टिकल विच हैड कम इन द Hindustan Times on Sunday. Yeah. So this is our team are there. We have advocates also there. Sabha Kurushi is there. Archana Gawas is also here. She is the development associate in terms of promoting lectures. Yeah. And we have associate branches like Airoli is there. Advocate Yogesh and Sonali are there. They are present today. So anyone related from that area, and if they have any issues, they are expert in cooperative sector and redevelopment also. So it's like how we can proceed as a team work is more important. एक PMC अकबर जीवानी अकेला कुछ नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहिए. So it's how we work in a team. Architects are there, consultants are there, structural engineers are there, advocates are there. Of all fields should collectively, unitedly come together and work so that we give you one-stop solution to all your needs. So these are the projects which I am doing in Bandra, being part of Bandra itself. So since I am here since 1969, so there are funding options also. We work out, depends on the project. Cost is there, developer is there, self-development is there. There are issues that we take care of. These are the one of the projects which was of MADA in term 33-7. Okay, so that is in South Bombay. So there are different policies for that also. This is a Musgaon. This is my being a family from construction industry. This is our family project. Construction at Kalyan, we completed 31 story, 95% work is done. These are the actual pictures. So कहने का मतलब है कि PMC हमने खाली किताब पढ़ के आपको बताना नहीं है, practical experience of construction भी हमने कर लिया. Every step in going forward, how do we go forward, क्या रुकावट आ सकती है हमें, वो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो क्या है, वो हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. This is a certificate which I have got from ministry in terms of that. So now what is PMC? Why PMC is required? Basically I do MADA and BMC lands also. The large clusters are there. But the whole idea is that we have to understand why you need a PMC. तो जनरली सब कहते हैं वो तो बिल्डर करेगा ना सब, हमको पीएमसी क्या करना है, हमको एक रुपया भी नहीं खर्चेगा, वो सब बिल्डर करेगा. वो मेरा घर भी मुझे खाली करके देगा, मुझे घर भी वापस बना के देगा, मुझे घर के बाहर भी भेजेगा, लेकिन मुझे वापस आना है. लेकिन उसके लिए हम क्या किए और क्या करना चाहिए. 5-6 हज़ार प्रोजेक्ट ऐसे ही बंद हो गए. रेरा आई तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ओनली टू डिसिप्लिन द बिल्डर्स. Yesterday's papers or today's paper, even now Maharashtra government ने भी लोगों की आवाज़ सुनी, तो they have appointed 12 officers to recover from the builders who have been awarded to pay to the flat buyers. That is running into almost 900 crores. But the whole idea is how do we stop that? उसके लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए तरुण गिया जी विल डीपली एक्सप्लेन और यू विल हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग इम्पोर्टेंस इन दैट. सो कहने का मतलब एज अ पीएमसी इज टू अंडरस्टैंड योर टाइटल. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज व्हाट इज योर नेम ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड पे है कि नहीं. अगर नहीं है तो बिल्डर का नाम है या तो ओनर का नाम है प्रीवियस. तो वी हैव टू फॉलो डीम कन्वेंस. दैट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन बिफोर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट. सो यू हैव टू go for redevelopment, understand the title. After you understand the title, whether your land is a private land, it is a leasehold land, collector land है कि माड़ा का land है, हर एक का अलग अलग नज़रिए से अलग अलग पॉलिसी से हमें फॉलो करना है. Once we identify that, even the road width is considered in the new this. 9 मीटर के रोड है, 9 से 12 मीटर, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30. तो FSI increases. 9 to 12 होगा तो 2 FSI बेसिक. Then 12 to 18 is 2.2, 18 to 24 is 2.4. Of course प्लस फंजिबल तो है 30 प्लस 35, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोड विथ से भी आपका FSI मिलता है कि नहीं. कुछ इश्यू सबको है. म्यूनसिपैलिटी ने हमारा रोड ले ली, रोड सेटबैक. ओके, काफ़ी साल पहले ले लिए, लेकिन हम आज रीडेवलपमेंट करते हैं तो हमने उसका कुछ कॉम्पनसेशन नहीं लिया, तो उसका हमको XX एरिया भी मिलता है टू एड इट. That I will explain
in the feasibility chapter. After you understand the feasibility, so basically सब आंकड़ों का खेल है, तो आपको थोड़ा टाइम उसमें देना चाहिए, how to understand it, how to read it. Okay, so then only you will understand कि what the other person has given, how to read it, how to understand it, how to analyze it, कि जो feasibility क्या बोलता है. फिर आप उसमें आपका थोड़ा अंदाज़ा लगाने का in terms of rent डाला है, feasibility में बराबर है कि नहीं, selling rate बराबर है कि नहीं, cost of construction बराबर है कि नहीं. So once that feasibility stage is crossed, then you go for the tendering, which we'll just take it, the process in detail. To show why a PMC is required, because आप अपने बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में आप मास्टर हो, तो जिधर ज़रूर पड़ेगी तो मैं आपकी एडवाइस दूंगा, लेकिन जिधर आपको मालूम नहीं है तो उसको मालूम करने की, समझने की कोशिश करने का, जो आप आए हो आज समझने के लिए, तो हम वो समझाएंगे कि इसमें कॉम्प्लेक्स भी है, सुनने के लिए अच्छा भी है, क्योंकि हर एक को बोलते हैं हमको खाली बोलो ना कितना एरिया देता है, कितना रेंट देता है, उससे ज़्यादा हमको कुछ समझने का नहीं, सुनने का नहीं, नाम अच्छा है कि नहीं, इसका पीछान वाला है कि नहीं. ओके, टुडे मिस्टर देव चोमल विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू अस के फ्रॉम द बैलेंस शीट वेदर ही इज कैपेसिटेड टू टेक मोर देन 4 प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स. उसका नेट वर्थ है 1000 करोड़ का, वो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेगा तो उसको इंश्योरेंस वाला भी नहीं करेगा. तो दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी देयर. ही मे बी अ गुड बिल्डर, ही मे बी अ गुड मैन, बट उसके पास रोकड़ा जितना है उसमें यही प्रोजेक्ट कर सकता है, आपका नहीं कर सकता, आप फिर कतार में खड़े रहोगे. दैट इज़ द होल अंडरस्टैंडिंग. सो बट कीपिंग इन माइंड, सो अंडरस्टैंडिंग दैट बिल्डर सिलेक्शन होने के बाद देर आर सो मेनी टर्म्स, वी विल टेक इट डाउन दिस लाइन. दिस आई जस्ट वांट टू शो के साइमल्टेनियसली इवन कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग. मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल जो है टुडे असेंबलिंग मोड में होता है, पूरा ब्रिज का ब्रिज इज मेड समवेयर, इट इज असेंबल्ड समवेयर. ओके, तो इट गिव्स गुड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, मिक्सिंग, मैचिंग. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड द होल आइडिया इज कि आज मैं घर से बाहर जाऊंगा, वापस कभी आऊँगा, 3 साल में आऊँगा, 4 साल में आऊँगा, 5 साल. सो इफ न्यू टेक्नोलॉजी इज टेकन, लार्सन एंड टुर्बो L&T बेंगलोर में 36 माले का बिल्डिंग, 36 माले का बिल्डिंग 96 डेज में कंप्लीट कर दिया. ओके, चाइना इज डूइंग इट 28 डेज और 28 आवर्स असेंबलिंग में, बट एटलीस्ट हमारे इंडिया में तो भी हो रहा है. सो दैट इज व्हाट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट ऑल टेक्नोलॉजी वी शुड नो. इट मे बी एक्सपेंसिव, तो बिल्डर मे नॉट वांट, बट एज अ सोसाइटी यू शुड इंसिस्ट कि भाई थोड़ा रेंट कम देना, थोड़ा एरिया कम कर देना, लेकिन डू दिस, बिकॉज हमें जो बिल्डिंग बनेगा हमारी लाइफ में एक बार ही बनना है रीडेवलपमेंट, तो वो नेक्स्ट 40-50 ईयर्स शुड बी अ गुड क्वालिटी वर्क. जैसे कि रेरा भी अभी कंडीशन रखा है कि बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ओके, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन दे बीइंग अ पार्ट ऑफ BI ऑल्सो देर आर डूइंग सीवरेज वर्क अंडर वाटर, क्योंकि बिल्डिंग बनेगा, कॉन्क्रीट जंगल बनेगा, equally you need infrastructure, light है, पानी है, sewerage है. So that also simultaneous work is going on, which is undertaken by BAI. So you see this row house, it is made on 3D technology, 3D printing technology. कितने दिन में हो गया? 5 days. एक कंप्यूटर लगता है, एक मशीन लगता है, बटन दबा दिया, 1-2 आदमी मांगते हैं, 5 दिन में स्ट्रक्चर इज रेडी, रो हाउस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग. टेक्सास में पूरा 3D प्रिंटिंग, पूरा होटल 3D प्रिंटिंग से हो गया. सो माइंडसेट जो मैं बोल रहा हूँ, इफ यू सी हियर इन जापान देयर इज अ सिंक फॉर वॉशिंग हैंड्स ऑन द टॉयलेट इटसेल्फ, सो दैट सेम वाटर कैन बी यूज अगेन इन द फ्लश. जापान सेव्स मिलियंस ऑफ वाटर सप्लाई हियर. तो इट इज़ नज़रिया है, चेंज करना है, माइंडसेट करना है कि हमें हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है, तो हम साथ में मिल के चलेंगे तो हम आगे जाएंगे. These are the regular conferences and all we attend. Networking, being a volunteer, I am a trained volunteer in disaster management, firefighting. I have been to Jammu earthquake, I have been to tsunami also, I have been to Ahmedabad floods also. So that social background is there, that is promoting me or inspiring me. Do such sessions and inspire as many people you can, or educate as many people as you want. It is not about money, it is about कि जितने घर बनेंगे उतने सपने साकार हो गए. Okay.
So this is where Prakash Darekar ji is also connected with Mumbai Bank. Praveen Darekar, his brother, is now the head of the Cell Development Committee. So it is just about networking people and understanding. Mumbai Jilla is also Mumbai government entity to promote advisory services only, right? So as you say, BJP Cell for Housing Society is made. Is the intention only to give free advice and guidance to his constituency members, right? This is one of the projects, being a family-owned construction business. This is one project, SRA, which I am doing this. Then there was an issue of double taxation of flats. 2 फ्लैट है, तो उसके ऊपर भी सेकेंड फ्लैट खाली भी रहता था तो इनकम टैक्स आपको नॉशनल इनकम लगाते थे, विच जी माध्यम के थ्रू we tried, and that has come off. Second house will not be taxed, income tax with that. So coming to the problem statement is builder selection, negotiation is time consuming, best offer providers, allegations, corrupt practices, builders take liberty change. So ये बहुत सारे issues है, तो ये तो हमें मालूम है, correct? तो हम ये सुनने के लिए आज नहीं आए, हम आगे क्या समझना है वो हमको करना है. तो मिस्टर ट्रम्प ऑर्गेनाइजेस फोरेज इनटू इंडियाज ऑफिस मार्केट. उधर यूएस के ट्रम्प बजा रहा है, लेकिन उनका इंडिया पे कितना यकीन है कि इज इन्वेस्टिंग ओवर ईयर. सो इट इज़ एन इंडिकेशन के कभी कभी हम जो दिखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, हकीकत और कुछ होता है. कि जो आदमी उधर कुछ और कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान इंडिया पे है in terms of that. So it is like he has his own projects also over here, investing. Someone sent me some photographs also in the morning where the Trump tower is coming in Prabha Devi or something. Anyway, so role of PMC in short is carry out structural audit. तो एक सवाल हमेशा रहता है 30 साल होएगा बाद में हमारा रीडेवलपमेंट होगा कि जल्दी भी हो सकता है. So it depends how well you have maintained that building. मेंटेन नहीं किया है, डिलैपिडेटेड हो रहा है, डेंजरस हो रहा है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर हैज़ द पावर्स टू गिव यू परमिशन कि भाई जल्दी करना है जल्दी करो. माड़ा में तो एक बिल्डिंग ने 8.5 साल में कर दी, क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गया, ज़्यादा एफएसआई मिला. प्रो रेटा वॉज नॉट देयर इन 2000, नाउ प्रो रेटा इज देयर. जैसे कि बैंड्रा में हुआ है, एनीवन फ्रॉम रेक्लेमेशन, या सो दे आर द बेस्ट beneficiaries of MHADA project, and it is a blessing in disguise to be on a MHADA land, because that pro rata FSI जो है, जैसे कि लीलावती के सामने जो ONGC क्वार्टर्स आ देर, फ्लैट है उनका 600 स्क्वायर फुट का, तो 3 FSI मिलता है, फंजिबल मिलता है. उसके अलावा you get to build additional almost 2200 स्क्वायर फीट. सो MHADA ने लिख के दिया 12 FSI मिलेगा. ओके, सो टेंडरिंग में भी हुआ. टेंडरिंग में बिल्डर ने बोला 100% देंगे, 110% देंगे, 130 देंगे. सो देन दे केम टू मी. तो ऐसे देखो गणित सीधा करने का, 12 FSI मिल रहा है जो MHADA ने लिख के दिया, क्योंकि उसके बाजू में जो विंग्स ग्राउंड है वो सब ग्राउंड है, इट्स इन अ कॉमन लेआउट. सो दैट ऑल MHADA इज केपेबल ऑफ और एलिजिबल टू गेट दैट एक्स्ट्रा FSI. ओके, तो वो FSI उनको देता है, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल मेंबर्स. तो उन्होंने कहा, तो मैंने सीधा गणित दिखाया कि भाई 12 FSI मिल रहे हैं, 4 FSI हमको दे दे, 8 FSI तू रख ले. तो 4 FSI में भी हमको 300% तो मिलना चाहिए ना. दिखने में या सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन किधर 2 FSI है और किधर 12 FSI है. सो धीरे धीरे करके करके करते फाइनली दे लैंडेड अप, ऐसे 300 तो आना ही है. तो फाइनली दे लैंडेड विथ समवन विथ 290%. सो कहने का मतलब है, लाइक एज आई सेड इन द मॉर्निंग, यू डोंट डिजर्व और यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट. सो दैट नेगोशिएट, अगर आपको मालूम है कि उधर 12 FSI है तो मैं क्यों चुप बैठूंगा 100% में, ऐसा. तो वो दैट इज़ द होल आइडिया. सो फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग. जैसे कि अभी नया पॉलिसी रिसेंटली आया, हु एवर इज विद इन 500 मीटर्स ऑफ मेट्रो विल गेट 1 FSI एक्स्ट्रा. रीजन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेज वी आर स्पेंडिंग थाउजेंड एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज़ ऑन मेट्रो. अगर उसको पब्लिक यूज़ नहीं करेगा तो उसका हमारा रिकवरी कैसा होगा. तो 500 मीटर में जितना मांगता है उन लोगों को एक्स्ट्रा FSI दो, जो हाइट मांगता है सब दो. सो कांदिवली के पहला धानुकरवाड़ी स्टेशन पे आप जाके देखोगे, 57 माले का बिल्डिंग बन गया, जस्ट फ्यू मीटर्स फ्रॉम मेट्रो.
57 विथ IODCC पब्लिक आने को भी रह गई. सो नहीं, कांदीवली, धानुकरवाड़ी. सो दीज आर द इश्यूज़. आज हम बेसिकली शेयर वही करना चाहते हैं कि अगर कोई कहता है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. देन द टेंडर कम्स, प्रिपरेशन ऑफ comparative charts, contractors, finalization of preparation of. So it's very important कि बिल्डर खाली अच्छा है, ब्रांड नेम है, वो ठीक है, क्या उन्होंने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट किया जिसको उसने ओसी ला के दिया. क्योंकि क्या होता है जब रेडी हो जाता है हम डेस्परेट रहते घर में घुसने के लिए. बिल्डर बोलेगा कि हम ओसी आया नहीं, इट इज़ इन प्रोसेस. नहीं वांदा नहीं, वो हम लोग को दे दो घर, तो वो चले जाता है. कितने हैं जो बिल्डर ने आपको कन्विंस करके नहीं दिया, तो डीम कन्विंस, टाइम जाता है, पैसा जाता है, खर्चा जाता है. बट इट इज़ नाउ अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर द डेवलपर इफ ही डजंट डू इट. ही हैज़ टू डू इट विद इन 4 months. तो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ रुकावट आती है दे प्रोवाइड सॉल्यूशंस. DN नगर में हाइट का रिस्ट्रिक्शन था बिकॉज नॉट ऑफ द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, देयर वर सिग्नल टावर्स. बिकॉज ऑफ दैट तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइडेड सब टावर निकालो, उधर से गोराई भेज दो. तो इंटरेस्टेड द वर्क टू MMRD एंड इट्स डन सो दैट हाइट रिस्ट्रिक्शन रिलीज. तो जहाँ जहाँ हम कुछ मांगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं. सो बट आइडिया होना चाहिए कि क्या हो सकता है इससे. सो लेट अस अंडरस्टैंड फाइनलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्डर बोलता है मैंने IOD लेके आया, वो बिल्डिंग खाली करो. म्यूनसिपालिटी वाला बोला है मैं आपको CC तभी दूंगा जब आप बिल्डिंग तोड़ के लाओगे. अभी प्लान में 0 FSI भी ला सकता हूँ प्लिंथ लेवल तक का. उसमें मुझे ना फंजिबल का प्रीमियम भरना है, डेवलपमेंट चार्ज भरना है, डेब्रिस भरना है, कुछ नहीं भरना है. लेकिन आप बोलेंगे अरे आमची बिल्डिंगचे झाले, प्लान पास झाले, अभी चलो, तो वो नहीं, पूरा FSI का पूरा प्रीमियम भरना है, भरेला है, वो दिखाएगा तो हम बाहर जाएंगे. नंबर 1, प्लान्स किधर है वो भी हमें समझना ज़रूरी है. कल ही हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर 79A प्रोसेस में भी अगर आपने SGM में बिल्डर को अपॉइंट कर दिया, लेकिन जब तक डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन नहीं होता है ऑन द टर्म्स, इट विल नॉट बी कंक्लूडेड कि ही हैज़ वन द बैटल एंड बॉल इज़ इन हिज कोर्ट. तो उसके पहले क्या समझना चाहिए, प्लान्स, बिल्डिंग का प्लान, कितना फ्लैट मिलेगा, किधर मिलेगा, कौन से माले में मिलेगा, व्हाट इज़ द ओपन स्पेस इज़ बीइंग लेफ्ट आउट. So there are so many things which you should know कि without each and every signing a PAAA agreement, permanent alternate agreement जो होता है, वो है पूरा पेमेंट नहीं किया है. बिकॉज इफ़ यू सी पेमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट 45% इज व्हाट यू पे टू द BMC or to the government or to GST, our sleeping partner. 45% of the project is there. तो ये प्लान मैन सब सबमिट हो गया तो आपका 30-35% उसका पैसा लगा. फिर आपका इशू आता है रेंट का, और फिर आता है कंस्ट्रक्शन का. बट इफ़ ही इज़ पुट इन 30-35-40%, उसके बाद भी जाता है तो इट इज़ जस्ट द रेंट एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, बट अगर म्यूनसिपलिटी कहती है बिल्डिंग डेमोलिश करो फिर मैं CC दूंगा, तो यू शुड से यू कीप दैट अमाउंट पेएबल फॉर द फुल प्लान इन एन एस्क्रो अकाउंट, देन ओनली वी विल गो. तो वो चीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the managing committee members and the office bearers to understand that कि हम कुछ करते हैं. बहुत सारे कंप्लेन करते हैं मैनेजिंग कमेटी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग कमेटी हमारा सुनती नहीं है. मैनेजिंग कमेटी बोलती फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. तो मेरा घर, मेरा सब कुछ, तो मुझे मेरा चीज़ समझने में कॉन्फिडेंशियली क्या आता है. सो इट इज़ जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट. देखो आदमी बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसे बुरा बनाती है. एक आदमी किसी के लिए भगवान होएगा, किसी के लिए कोई होगा. मैं किसी को हेल्प किया होगा तो पूरी ज़िंदगी मेरे को पूजा करेगा, लेकिन मैंने किसका कुछ गलत किया तो ज़िंदगी भर करेगा. सो हर एक आदमी का नज़रिया खाली चेंज करना है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मैं भी वही बिल्डिंग में जाने वाला हूँ. तो वो बिल्डिंग भी बनेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं. बिल्डिंग तो द होल आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड के नॉलेज दो, क्योंकि किधर न किधर सबके बिल्डिंग में कोई ना कोई एडवोकेट होगा, किधर न किधर आर्किटेक्ट होगा, तो इसको इन्वॉल्व करके समझने का कोशिश करो ऐसा. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. द की रोल्स, फिजिबिलिटी प्लानिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट, स्टेक होल्डर्स, ये सब इंट्रिकेट नॉलेज है.
डिटेल नॉलेज है जो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे मैं आपको आईओडी प्लान दिखा दिया, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि ये फुल्ली पेड है, तो वो एज अ पीएमसी आपको बताएंगे कि नहीं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड, नॉट योर साइड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो ये नहीं भरा है तो हम कैसा करेंगे, वो आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कंडीशन भी होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई यू पीएमसी आएगा, पीएमसी का फीस हम लोग नहीं देंगे, वो बिल्डर देगा। ओके तो अक्सर होएगा कि अगर मैं बोलता हूँ सबको, अगर बिल्डर मुझे फीस देता है तो मैं आपका बिल्डर, आपका पीएमसी हुआ कि सोसाइटी का हुआ कि बिल्डर का हुआ, तो उसमें उसका सोल्यूशन ये है, द पीएमसी चार्जेस विल बी पेड बाय द बिल्डर टू द सोसाइटी, एंड इफ सोसाइटी इज हैप्पी विथ मी दे विल पे मी, अदरवाइज यू से गेट आउट। इट इज़ सो सिंपल। तो मुझे कुछ भी पेमेंट बिल्डर से लेने का अधिकार नहीं है, सोसाइटी से लेने का अधिकार है। ये कंडीशन आप बोलोगे तो आधे पीएमसी ऐसे ही चले जाएंगे। Okay, so these are small things, but they matter most to us. Okay, so why PMCs are crucial? Because of the expertise, risk reduction, cost efficiency, quality assurance, transparency is the key. मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं आपको ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं अगर आपको छुपा रहा हूँ, नहीं, आपको मांगता है मेरी ऑफिस में आके पढ़ के जाना, मैं आपको जेरोक्स नहीं दूंगा, तो मुझे क्या समझना चाहिए। तो मैनी सोसाइटीज़ व्हाट दे आर डूइंग, दे कम टू मी, बोले आप ले लो, आप हमको बना के दो, हमको तो समझने पड़ती है, आप हमको समझाओ, यू टेक द कॉस्ट बट वी आर नॉट गेटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो दैट स्टिग्मा हैज़ टू गो, दैट टुगेदरनेस हैज़ टू कम फ्रॉम दी सोसाइटी टुगेदर, कि हम उसमें अगर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं तो तुम्हारे खुद के घर के साथ भी तो खिलवाड़ कर रही हो। तो दैट इज़ वेरी इसेंशियल। बाकी सब तो ठीक है, मैं जैसे कहा कि चोपड़े में मिलेगा, गूगल में मिलेगा, एआई भी अभी बाकी है तो वो भी दे देगा आपको। लेकिन ये माइंडसेट जो करना है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अपने आप को भी तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, किधर न किधर तो तुम भी अटकोगे अगर तुम गलत आदमी के साथ जाओगे तो। सो कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर। सी देखो, सीनियर सिटीजन्स आर देयर, ओके, दे सेड व्हाट इज लेफ्ट इन माई लाइफ नाउ, हाउ मेनी ईयर्स। तो अभी मुझे रीडेवलपमेंट में जाना, घर तोड़ के जाना, बाहर जाना, वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। सो वी रिस्पेक्ट दैट, ओके। सो दीज आर द इश्यूज टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। बट इट इज़ लाइक द ग्रैंड पेरेंट्स विल ऑलवेज से कि कुछ नहीं तो मेरे बच्चे के लिए होगा, उसके बच्चे के लिए होगा, तो बोले ठीक है, ओके। फॉर दीज आर द इश्यूज विच विल कम। रीडेवलपमेंट हैज़ बिकम मोर कंपल्शन। हम उसको बिल्डिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो डिटीरियोरेट हो जाएगा, तो आज नहीं तो कल गिरना है। रिपेयरिंग करेंगे तो कितना साल बढ़ेगा, 3 साल 5 साल, तो कल ना सुबह आपको रीडेवलपमेंट तो करना ही है। तो आज करे कि कल करे, दैट इशू इज़ दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज टेक्निकल, कमर्शियल, सोशल, बहुत सारा चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। बट इफ फॉर एज अ प्रोफेशनल्स और फॉर अ बिल्डर इट इज़ समथिंग रियली रूटीन। बिल्डर को काम क्या है, पैसे का बंदोबस्त करना, इसके लिए हम उसके पास जाते हैं। बाकी वो भी आर्किटेक्ट के बिगर प्लान बना सकता है, नहीं है, लीगल एडवोकेट बिगर वो नहीं बना सकता है। सो देर आर सो मेनी इश्यूज आर देयर विच लाइज ऑन अ गुड प्रोफेशनल्स रादर देन अ गुड बिल्डर, ओके। सो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 5 years है, लेकिन इफ़ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो 30 महीने में होता है आज 18 महीने में हो सकता है। जैसे मसगांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जिधर 1 महीने में 1 फ्लोर होता है स्लैब, जो ट्रेडिशनल बैठे से, अभी 1 महीने में 3 स्लैब ठोकते हैं वो लोग, क्योंकि एक ही फ्लोर में साइमल्टेनियसली वॉल्स आर मेड, कॉलम्स आर मेड, स्लैब्स आर मेड, एवरीथिंग इज देयर। सो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। बिल्डर को भी फ़ायदा है क्योंकि उसको रेंट कम देना पड़ेगा, भले तो थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज होता है, बट इट इज़ कवर्ड अप एंड ही डज अ न्यू प्रोजेक्ट, माल जल्दी बनेगा, जल्दी बिकता है। तो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर। सो इन फेज वाइज जर्नी इज फिजिबिलिटी स्टडी, टेंडरिंग, pre-construction, construction, and the happy moment repossession. These are the whole process. Okay, so redevelopment guidelines as a 79A up to feasibility report. So I'll just explain the basic concept. The first meeting, members, 1/5 of the members have to make an application.
to the society, by we want to go for redevelopment, call for a special general body meeting. Okay? Managing committee calls for a meeting of the managing committee, then they decide. Okay? So they decide on that, in which they have to call for quotations from PMC. So either you keep it very open to all the members, जिसको भी मांगता है अपना PMC का quotation लेके आओ. Number one is that. Or you put it in a newspaper ad, जिसको आने का आएगा, let it be fair. Out of that you shortlist. Then the first meeting is very important. First meeting, 67% attendance has to be there. Physical attendance. Okay? And out of that, so अगर 100 members है, 67 people should attend that. And out of that 67, 51 have to vote for redevelopment. That is the first stepping stone. Redevelopment करना है नहीं करना है. If majority are not interested only, तो डब्बे में डाल दो उसको. Now there are various issues coming out of this. Many people are abroad. Many people ने भाड़े पे दे दिया है. तो वो numbers नहीं आता है. 67%. So उसके लिए मैनेजिंग कमेटी फिर भी SGM पास कर देती है कि हाँ हमने Zoom पे ले लिया, तो उसको मिलके 67% होता है. बट पीपल डिसेंटिंग मेंबर्स जो बोलते हैं ना कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो कंप्लेन हो जाता है. 67% वाज नॉट देयर, Zoom इज़ नॉट. तो हमने मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि जो कोविड में अलाउड था, तो अभी क्यों गुनाह हो गया वो? वाई इट इज़ इलीगल नाउ? यू हैव अ प्रॉपर प्रोसेस to verify online people also. ऐसा नहीं कि कोई भी Zoom meeting में आ गया. There is a proper documentation software where to identify the only member is going to attend that Zoom meeting. With that process also it can be, otherwise redevelopment तो होते ही रहेगा, नहीं होएगा, अटक जाएगा. तो this problem government has to understand कि खाली आप अपना जितना भी अच्छा policy बनाओ, लेकिन ये भी तो सुनो कि किधर है. So what, coming to that, out of that 67%, 51% has to pass रीडेवलपमेंट करना है. अगर टाइटल नहीं है तो पास अ रेजोल्यूशन फॉर डीम कन्वेंस ऑल्सो. ओके, एंड देन यू प्रोसीड कि भाई वी हैव टू अपॉइंट अ PMC. ओके, सो देन अगेन, सो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल. देर वॉज कि बिकॉज द होल प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 to 11 SGMs होता है. सो एक में 67% लाना नाक में दम होता है, तो बाकी का तो क्या? तो recent High Court judgment, there is no provision in the law that the second meeting has to be 67%. It is only the first meeting. So subsequent meeting, only thing you should have a proper record कि हमने सबको information भेजा, by email भेजा या speed post से भेजा या कुछ भी भेजा, तो that has to be on record कि I have done my duty of informing everyone. If he doesn't come, he will be given the minutes of the meeting or whatever decision takes place. That is the whole idea. So that is concerned that this is the basic foundation. Do you everyone agree on that? I think there are office bearers. Anyone who are office bearers over here? Okay. So I think if this is understanding is taken, कि we have informed everyone, हमने सबको नॉलेज दे दिया, सबको चांस दे दिया, या तो हमने PMC अभी 3 शॉर्टलिस्ट करना है, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी डन इन अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग. उसमें भले 51% नहीं आएगा, चलेगा 67%, बट subsequently you have to inform that we got this, we got a special general body meeting and we appointed. Okay, so this is how the PMC is then appointed. So the whole idea is from the date of first application, that within 2 months managing committee has to organize this special general body meeting. Okay. So then the primary decision, minimum quorum 2/3, primary decision by majority within 7 days SGM. Then you send the notices, email, then appointment of PMC within 30 days if it is decided in that meeting, if you have called before. Then the PMC is appointed duly in the special general body meeting. Okay. Then he is entrusted the work to prepare a feasibility report in terms of after you give him all the property related documents. आपका past building का plan pass, property card, DP remarks, road length, road division कितना हो रहा है, and then appointment of PMC and agreement with him within 30 days from the SGM 1. Then you have to make a website. Okay.
to maintain transparency. मुझे किसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़े. I am uploading on a website, and simultaneously every minutes you decide every decision. Simultaneously a record has to be maintained with the deputy register of your ward. To see a parallel documentation is being prepared at the register office, so you can always collect it, provided the managing committee submits them. Or unless someone tells them that it is not being submitted, so please submit it. So then, first step, initiating redevelopment, decision for redevelopment, selection of PMC, finalization of base carpet area. अक्सर इसके ऊपर वाद विवाद होता है. मेरा एरिया ज़्यादा है, मेरा बैल्कनी भी मेरा है, मैंने एक्सटेंड किया. So thumb rule, get the original building plans passed by BMC, which will say one FSI use, that time 10% balcony was free of FSI, तो आपका 1.10 हो सकता है अगर balcony है तो. बाकी हम कुछ भी extend कर दिए तो मैं इतना एरिया तो हो सकता है. कभी कभी तो किधर है 1000 एरिया है उसका 1500 एरिया यूज़ कर रहा है किधर उधर फैल के, तो मुझे रीडेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, जो मुझे 40% ही मिलने वाला है, तो मैं तो ऑलरेडी ये एंजॉय करता हूँ. बट इट इज़ अफेक्टिंग अदर्स. सो बिल्डिंग प्लान के बेसिस के ऊपर यू हैव टू फाइनलाइज कि दीज आर द कारपेट एरिया, एंड ऑन दैट कारपेट एरिया यू विल गेट एन ऑफर फ्रॉम द बिल्डर. ओके, विच आइडिया यू विल गेट फ्रॉम दी फिजिबिलिटी रिपोर्ट. फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी वही बोलेगा बिल्डिंग का प्लान में ये एरिया है आपका, इसके ऊपर क्या एडवांटेज मिलेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ. आपका एक्सटेंडेड एरिया के ऊपर मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकता हूँ. सो फाइनलाइजेशन ऑफ इज डन, एंड अप्रूवल ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑल्सो हैज़ टू बी डन इन अ नेक्स्ट SGM. सो कुछ भी काम SGM के बगैर आगे बढ़ता नहीं है बहुत सिंपल, बट माइंड सेट टू डू इट कि भाई ये विच वॉज अप्रूव्ड, से एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड ऑफ इट, everyone is given the minutes of what was decided in the previous SGM, and then only you follow with the next SGM. So after that, website is made and write to the deputy register. Then the tendering process है. So tendering process में basically how it is done. Letter for preparation of tender, the managing committee tells the PMC that now feasibility report is approved. Okay, now you prepare a tender document. So what happens in the tender document? Submit draft tender. PMC has to submit a draft of that. Obtain recent property documents. PR card, city survey plan, DPE remarks, TP remark. इसके basis पे this is all mentioned in the tender form. Any litigation faced by the society has to be informed in the tender. What are your expectations has to come in the whatever PMC or legal expenses has to be paid has to come in the tender. Nothing has to be hidden, because ultimately by a search report everything will come out. Okay, so based on that a tender is floated. That also tender document also, once it is prepared, discussed, distributed, whoever wants it should be given a copy. If not, at least a soft copy, because it is an exhaustive document. 80-90-100 पेज का document बनता है. Or if you want a printout, society can charge you 5 rupees and get you done and give it to you. Or give it on a soft copy. But everyone should get it, read it. आपको नहीं समझ पड़ता है किसको समझाओ. But these are the small things you should take in hand. नहीं, मुझे information मिला, मुझे document मिला, मुझे नहीं समझ पड़ता है तो मैं कोशिश तो करूँ उसको पढ़ने का. I can talk to 10 people. That tender document also, before publishing, has to be approved in the special general body meeting. So you know what is going in the tender, what is going out, okay, what is being published, what and all. Then the tendering period is over. You get the tenders in terms of, there are two, the financials are there, and one is the technical part where he qualifies or not. Send notice to members, send, okay. Then after the tender is there, it is PMC to submit final tender to managing committee. Special general body meeting में कुछ suggestion आया, कुछ queries आया, okay. That is noted. PMC takes note of that. Either he replies कि he agree, he doesn't agree, or if he doesn't agree, why he doesn't agree, okay. And then the tender is floated, display, press notice and project brief on society notice board. बहुत बाजू सोसाइटी में मालूम भी नहीं पड़ता है कि कभी टेंडर का नोटिस दिया, कभी टेंडर आया, कभी भर गया, कभी आया.
So notice board is one medium where it was published. It has to be published. So people, members आपका ड्यूटी है जब भी एंट्री मारो तो नोटिस बोर्ड पे एक नज़र जरूर मारना चाहिए. Okay. Then the tenders are given, sale tender होता है, display of list of tenders sold. Then the most important part is pre-tender meeting भी होना चाहिए, whoever has taken the forms. कि भाई आपने टेंडर लेके गया, आपने पढ़ा, कुछ क्वेरी है तो अभी रिजॉल्व करो, बाद में नहीं. You know, so that pre-tender also does in the society only, where builders come and ask, these are my queries, I want answers for this and all that. Then the tendering होने के बाद समझो 6-7 टेंडर आपको आता है तो उसका comparative chart बनता है, which is the role of the PMC to make, कि इसका background क्या है, इसका प्लस क्या है, इसका क्या माइनस है, इसका कितना स्ट्रेंथ है, इसने कितने को हैरान किया या तो कितने को सुखी किया है. So that has to understand before. Don't go by the name, don't go by the fame. Okay? The document speaks into the balance sheet, for which a good CA also is required to understand and make you understand. So there is an important role of CA also when it comes to selection of a builder with his financials. कुछ बिल्डर होएगा कि मेरे पास रोकड़ा है, पैसा बाइट नहीं है. So many issues will come. A good builder may be on a white record, maybe on a cash record, we don't know. But what is there, we have to understand that. कि कल सुबह कुछ होएगा तो हम उसका बैलेंस शीट पकड़ेंगे, उसका रोकड़े को नहीं पकड़ सकते. So these are small things to understand. Today, redevelopment, everyone wants to go, everyone is going. Every second building is going. So मेरे को रास्ते में जितने भी मिलते 10 में से 8 जन को बोलेगा तो बोलेगा हमको हमारा भाई redevelopment का बातचीत चालू है. So it is good. But there are few good builders. तो अच्छा बिल्डर भी रहेगा तो उसके बाद 10 प्रोजेक्ट रहेंगे तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे कि ये अच्छा है तो हम कतार में खड़े रह जाएंगे, तो हमारा टर्न कभी आएगा मुझे नहीं मालूम. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर. पैसा किसके पास आज है, वो हमारे बिल्डर. ओके, रेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स ओनली डूइंग वर्क. आर्किटेक्ट विल डू द प्लानिंग, PMC विल डू हिज रोल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर विल सर्टिफाई, RCC कंसल्टेंट वो बोलेगा कि 14 माले की बिल्डिंग में नीचू कंक्रीट कितना लगना है, बराबर है. तो प्रोफेशनल्स ही सब काम करने वाले. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसके पास पैसा है वो समझना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए अगर सही PMC आपको बता सकता है कि आज उसके खींचे में पैसा है कि नहीं. आदमी अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, लेकिन पैसा है कि नहीं, वो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दैट शुड मैटर टू अस. इंडिया में भी शाइनिंग, इंडिया में भी डू एवरीथिंग, विकसित भारत, ट्रिलियन कॉमेडी, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरा घर है, उसके बारे में मुझे समझना है कि मेरे साथ उसमें कोई खिलवाड़ हो रहा है क्या, क्योंकि वो ज़िंदगी की एक आपकी आखिरी पूंजी है जिसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते. टेंडरिंग में सब रिजेक्ट भी करने का तो रिजेक्ट कर दो कि भाई हमको ध्यान में नहीं पड़ा ये बिल्डर. ज़रूरी नहीं कि एक कोई अपॉइंट करना है. ओके, सो देर आर इश्यूज टू अंडरस्टैंड दैट. Approval of tender documents is done, shortlisting is done, presentation to members are done. After the builders are shortlisted, they are called for presentation. कि भाई you बताओ क्या है, तुम्हारा क्या दिमाग में है, तुम क्या कर रहे हो, where is the layout, where is my building. अक्सर ये common question रहता है, saleable building और tenant building same quality का होगा कि नहीं. So very valid question. Okay. बिल्डर को उसका माल बनाना है, बेचना है, तो मार्बल लगाएगा, आपको टाइल लगा के देगा. सो दीज आर द इश्यूज वेयर यू हैव टू नेगोशिएट इन टर्म्स ऑफ दैट. और खाली बोलने पे नहीं जाना है, इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड कि भाई दीज आर द कंडीशंस. ओके, सो प्री कंस्ट्रक्शन में इशू LOI टू डेवलपर. ये होने के बाद उसको LOI देने के बाद यू हैव टू एंश्योर दैट ही गिव्स यू द प्लान्स कि क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है. दैट प्लान्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड इन द SGM बिफोर फाइनली साइनिंग द डेवलपमेंट अग्रीमेंट विथ हिम. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो हेड. अक्सर ऐसा 1-2 प्रोजेक्ट बैंड्रा में हो गया, कमर्शियल है, नीचे शॉप्स है. AGM में बहुत क्राफ्टिली बोला कि मैं आपको रोड फेसिंग दूंगा, मैं आपको रोड फेसिंग दूंगा, लेकिन मैंने आपको ऐसा थोड़ी बोला कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे दूंगा.
तो झगड़ा चालू हो गया। 16 दुकान को बोला आपको फर्स्ट फ्लोर पे दूंगा। आई डोंट वांट टू नेम द बिल्डर, बट कहने का मतलब है कि आदमी किधर छटकबाजी मिलती है फॉर फॉल्टी डॉक्यूमेंटेशन तो छोड़ता नहीं है, इन शॉर्ट। तो वो 16 दुकान वाले गए डेप्यूटी रजिस्टर का, डेप्यूटी रजिस्टर के बाद मैटर इज इन द कोर्ट, तो हो गया रीडेवलपमेंट। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है जो है अप्रूवल ऑफ द प्लान्स, ऑब्टेन परमिशंस, एग्जीक्यूट। PAAA agreement is the only document which you will have when you leave out. घर से बाहर जाने के बाद वही एक कपड़ा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा जो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो पहले स्टैम्प ड्यूटी लगता था, अभी गवर्नमेंट हैज रिड्यूस के सिंस इट इज़ पेड इन डेवलपमेंट अग्रीमेंट, यू डोंट हैव टू पे अगेन। तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो PAAA अग्रीमेंट आपका कर सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनका टीम होता है, PMC का टीम होता है, दे बोथ कोऑर्डिनेट, दे बोथ वर्क व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सिस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, कौन आपका तरफ से आएगा, PMC की तरफ से कौन खड़ा रहेगा वाइल यू आर आउट। यू कैन सी थ्रू CCTV कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड। सो आप रोज़ अपना घर का काम हो रहा है नहीं हो रहा है देख सकते हो, आप किधर भी होगा। तो दैट इज़ कॉमन नॉर्म्स नाउ, ओके। बट द होल आइडिया इज द सिस्टम्स एंड प्लेस, रिपोर्टिंग्स एंड प्लेस। डिले हो गया तो डिले हो गया, हम लिखता होगा मेरे में से डिले हो गया, बट दैट हैज़ टू बी नोटेड। जल्दी हो गया तो उसको शाबाशी भी दे सकते हैं कि जल्दी किया, ओके, लेकिन किया तो सही। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। PMC's रोल टू मॉनिटर क्वालिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। सिंपल, रेती में सीमेंट मिलाता है कि सीमेंट में रेती मिलाता है, वही देखना है, ओके। जाड़ा हिसाब वही है और कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये सब होना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ दैट। बिल्डर में भी गुड, लेकिन वो किधर बैठा है, उसने तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर भी अपने हिसाब से मस्ती करता है तो वी डोंट नो, और उसको भी है कि भाई थोड़ा मैं मटेरियल में इधर करूँगा तो मेरे इतने पैसे बचेंगे। तो वो रोल हमारा है। अब आजकल तो कंक्रीट मिक्सिंग होकर आता है डायरेक्ट। सो एवरी लोड दैट कम्स, RMC जिसको कहते हैं, is being tested before leaving that factory. That certificate आपको ट्रक वाला नहीं लाएगा तो उसको वापस भेज देने का, सिंपल, ओके। सो कौन करेगा? व्हेन इंजीनियर और सुपरवाइजर इज अपॉइंटेड बाय अ PMC on behalf of the society, he will give you that, okay. Developers function, further statutory approvals, further working, material test, concrete cube, consultant. तो ये सब इनका काम है जो PMC विल टेक केयर ऑफ, राइट। वो तो उसका ऑफिस में बैठा है, तुम तुम्हारे घर में बैठे हो, ओके। सो रिपोजेशन इज द हैप्पी मोमेंट कि हमें रिपोजेशन मिल रहा है। सो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर देयर विच यू शुड आइडेंटिफाई एंड कीप योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ what are the incomplete work, what is the preparation work, what are the snag leg equipment जो बोला था कि नहीं, amenities जो बोला था कि नहीं, जिम बनाने का बोला था कि नहीं। These are the all things you have to check as a project closure documentation. Construction related approvals are there, NOC है कि नहीं, OC है कि नहीं, completion certificate है कि नहीं, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। Because even if you feel today अगर वो प्रोजेक्ट डिले भी हो जाता है तो आप पोजीशन लेने के बाद भी यू कैन गो टू रेरा कि भाई ही हैज़ डिलेड द प्रोजेक्ट, आई एम एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट, ओके। सो अक्सर है कि मैं घर में ले लिया तो मेरा क्लेम छूट गया, ऐसा नहीं है, जो है वो है, ओके। सो सर्टिफिकेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेयर अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट होता है। तो सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, वर्क कंप्लीशन, वर्क क्वालिटी, मेनी strings of certificates are required which as a society you should be having in your file. So coming to this, now we'll go to understand what is feasibility, okay. So yeah, okay, safety like pollution and all. Yeah, those are the stringent measures already always there, which be, okay.
Okay. Okay, so now let us understand what is about my plot. This is the society. The red line is the plot, and the inner line is the building. Okay, this is what is called plot. में आपका compound आ जाता है, उसमें आपका building खड़ा है. तो let us understand what is FSI. हम FSI बात करते हैं. What is FSI? तो plot area divided by the area of the building. Okay, so if I say 1 FSI, तो मेरा 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और मेरा 10,000 स्क्वायर फुट बांधने को मिला है, तो मेरा 1 FSI हो गया. मुझे 2 FSI मिलता है तो मैं 10,000 के प्लॉट में 20,000 बना सकता हूँ. मेरे को 3 FSI मिलेगा तो मैं 10,000 के प्लॉट में 30,000 बना सकता हूँ. ऐसा 12 FSI भी होएगा तो मेरा 10,000 का रहेगा तो मैं 1,20,000 बना सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड FSI. Okay, so once you ascertain that, so I will just shortly take this MHADA layout. I think reclamation, anyone else is over here who's with MHADA layout? Okay, quite a few are there. So I'll just briefly understand how MHADA plans are working. MHADA has a regulation of 33.5, 33.7, 33.7A, 33.9. Basically 33.5 is on MHADA layouts. 33.7 is a cess building. Cess building जो है कि लैंडलॉर्ड इज देयर, उन्होंने 50-60 साल पहले 50-60 रुपये में भाड़े पे दिया था, अभी इज नॉट एबल टू मेंटेन. सो MHADA मेंटेन्स दोज बिल्डिंग्स एट देयर ओन कॉस्ट. इन रिटर्न दे कलेक्ट सम सेस विच इज अ नॉमिनल टू अगेंस्ट व्हाट दे स्पेंड. ओके, क्या हो? So, Jude, are we ready? Okay. Where are we? Okay, so here we were with MHADA layout 33.5. So in a MHADA layout, the basic FSI is इसमें MHADA में या तो direct flat sale is done by MHADA to you, or MHADA has given land on lease to the society, or MHADA has given tenements on lease. Building खुद का है, आपको flat भाड़े पे दिया है या तो building आपको भाड़े पे दिया है. So there are two rates for everyone: sharing of excess area, paying on premium. Both options are available. अक्सर builder premium भर के flats नहीं देता है. So FSI basic is 3 on MHADA layout, and if it is a road or the plot is above 4,000 meters in the island city, that is Bombay से कोलाबा रहेगा तो 4,000 meters, suburbs में रहेगा तो 6,000 meters होता है, तो it becomes a FSI of 4. One extra FSI is there, और वो एक extra FSI में 30% MHADA takes the flats, so that 70% comes to you, to the builder or you. Okay, so this is most important what I want to explain, the pro rata FSI, which is a hidden jewel in MHADA layouts. Okay, so MHADA का जो layout रहता है तो उसमें internal वो roads भी बनाते हैं, right? Internal amenities भी होता है, garden भी होता है, but that land belongs to MHADA. So what they do कि when there are suppose एक layout में 10 building है, उसमें 50 जन रहते हैं तो totally there are 500 people. लेकिन उसमें रोड्स है, इंटरनल रोड्स है, गार्डन है, उसका एरिया कैलकुलेट करते, उसका भी FSI 3 गिन के, दैट एक्स्ट्रा FSI इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टेनेमेंट्स इन दैट लेआउट, वन पर्टिकुलर. ओके, सो समझो प्लॉट एरिया इज 10,000 स्क्वायर मीटर एंड रिजर्वेशन इज 1,000, तो आपका प्लॉट एरिया हो गया 9,000. 4,000 square meters is of internal roads, internal gardens, amenities.
तो आपका नेट प्लॉट हो गया 5000 स्क्वायर मीटर. ओके, सो दैट 5000 स्क्वायर मीटर में 4000 स्क्वायर मीटर का 3 FSI हो गया 12000 मीटर. ओके, now this 12,000 is divided by, suppose there are 300 members in that complex, so each one will get 40 square meters extra. तो आपका समझो एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फीट है, यू आर एंटाइटल फॉर 3 FSI, तो आपका 3000 स्क्वायर फुट हो गया, प्लस यू ऐड दिस 400 स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट यू आर एलिजिबल. जैसे कि मोतीलाल नगर जो है, इट्स अ ह्यूज एरिया, उसमें प्रो रेटा इज ऑलमोस्ट 185 स्क्वायर मीटर्स, ये 40 स्क्वायर मीटर है, दैट इज 2000 स्क्वायर फुट. तो उनका 600 स्क्वायर फुट का वो 3600 बना सकते हैं. दे विल बी गिवन परमिशन टू बिल्ड 3600. लेकिन मैंने कहा अगर तुम तुम्हारे पैसे से बनाओगे तो तुमको 3600 तुम बना सकते हो. लेकिन अगर डेवलपर आता है, he pays the premiums, he pays the cost, he does the construction, he does everything, then he will have to recover his cost with some profit. So he may give you, instead of 3600, he should give you 2000 to 2200. Okay, ये सारा मोतीलाल नगर का इश्यू वही है. They have no issue with the government, they have no issue with MHADA, they have no issue with Adani, but हमारा न्याय दो, हमको इतना मिलना चाहिए. So that is the whole issue which they have understood कि कोर्ट में जाके किसका फ़ायदा नहीं होने वाला है. कोर्ट अपनी जगह पे रहेगा, 100 साल भी रहेगा, MHADA भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा, हम रहे ना न रहे. तो लेट अस हैव सम कंक्लूसिव पॉजिटिव टॉक्स टू दैट. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि व्हाट यू आर एलिजिबल. जैसे कि बैंड्रा रेक्लेमेशन में 600 है. देयर इज़ वन लेआउट विच इज़ ऑपोजिट लीलावती, दैट बेल्ट इज़ देयर, जिधर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इज़ डन, देयर इट इज़ 175 स्क्वायर मीटर्स. सो ऑलमोस्ट 1800-1900 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा यू अलाउड टू बिल्ड. उसमें से बिल्डर आपको कितना देगा, खुद कितना रखेगा, दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट. बट इट इज़ अ यूनिक प्रपोजल रादर देन नॉर्मल. नॉर्मल प्लान रहेगा तो आपको 40% 50% से कोई ज़्यादा देता नहीं है. करेक्ट. बट बिकॉज ऑफ दिस प्रो रेटा FSI, विच रेयरली पीपल डोंट नो और डोंट अंडरस्टैंड, so I said openly, this is it. Like Bandra also, being in Bandra, previous 2-3 sessions also, all those who attended, I clearly said that there is a provision of clubbing of schemes. आप रेजिडेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रहे हो 33(7)B में, ओके, तो उसमें एक स्कीम है, लेकिन देयर इज़ वन मोर स्कीम. आप क्लब करोगे तो आपको एक FSI एक्स्ट्रा मिलता है. तो जैसे कि आपको फंजीबल के साथ 2.4 मिलता है, 18 मीटर रोड होगा, बट इफ़ यू क्लब द स्कीम यू कैन गेट 4 FSI और प्लस फंजीबल, तो 5.4. तो बैंड्रा में कोई प्रोजेक्ट नहीं जिधर 5.4 के नीचे होगा, अनलेस द रोड इज़ बिटवीन 9 and 2. 12 to 18 में होएगा तो यू आर एलिजिबल. सो इट इज़ एन ओपन डिक्लेरेशन फ्रॉम मी कि दिस इज़ व्हाट यू शुड गेट एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड सी इन योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि हाउ मच FSI आई एम गेटिंग और हाउ मच आई एम एंटाइटल टू, हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर, हाउ मेनी स्कीम्स आर क्लब्ड. Okay, so there are various schemes, 3312B है, 3311 है, 3320B है. Out of that, 12A is most suitable, where you have to just pay and take the FSI. Okay. So this is pro rata, what I am trying to understand. This is a plot. So 33(7)B में also you get an additional FSI. जैसे कि 1000 मीटर का प्लॉट है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, बराबर है. समझो आई जस्ट गिव एग्जाम्पल टू समवन, उनका 400 मीटर रोड में गया, तो हो गया उसका नेट प्लॉट 1000. ओके, अभी 1000 में आपका वो नेट प्लॉट हो गया, लेकिन आपको TDR जो मिलेगा, या तो FSI 0.5 0.5 FSI मिलेगा, दैट यू हैव टू गाइड फ्रॉम दी 0.5 आपको गवर्नमेंट से लेना है, 0.5 और 0.7 यू हैव टू बाय फ्रॉम दी मार्केट. लेकिन समझो उसमें 1000 स्क्वायर फुट 1400 स्क्वायर फुट के प्लॉट के ऊपर आपको जो भी TDR लेना है, तो यू हैव टू परचेस 700 स्क्वायर मीटर. नाउ आपका जितना फ्लैट है इनटू 10 स्क्वायर मीटर्स वो ऐड करो, या तो 15% ऑफ द प्लॉट, उतना आपको कम TDR खरीदना है. तो समझो जिधर 700 आपको खरीदने का होगा, यू विल हैव टू परचेज ओनली 200 और 300, रेस्ट इज गिवन एज फ्री. ओके, सो दीज आर द कैलकुलेशन डन फॉर.
So basically, very important is to see your DP plan, yeah? So it's a general tendency Yeah. that builders refuse to talk about 15%. About? This 15% of the, for the 30-year rule. This one you just talked about. You're talking about the FSI? Yes. Huh? The 15% Incentive, yeah, yeah, the builders do not want to talk about it. yeah. So what do we do about it? So I'm explaining today ना, so tomorrow you can talk about it कि this is there under 33(7)(b) ये TDR आपको 1000 मीटर लेना है, उसमें से ये आपको कम लेना है. So the whole purpose is explaining that this feasibility what I'm explaining to you. I'll go in further detail in showing you the one live this. So but this will always tell you कि आपका रोड कितना जाता है आपके प्लॉट में कोई रिजर्वेशन तो नहीं आ गया, गार्डन आ गया, पब्लिक गार्डन आ गया, रोड कितना हो गया. सो दिस डीपी रिमार्क जो बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यू शुड सी बिफोर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट. व्हाट हैज़ कम ऑन माई प्लॉट, व्हाट न्यू थिंग है, मिस्टेक से भी आ सकता है तो उसको रेक्टिफिकेशन करना चाहिए. सो मेरा प्लॉट आज क्लीन है कि नहीं कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एनी रिजर्वेशन. एक रिजर्वेशन हो सकता है रोड का. ओके, सो एरियल व्यू देखेंगे तो ये आपको आइडिया मिलेगा कि दिस इज 3 buildings आर गोइंग टुगेदर. ओके, दिस इज ऑफ प्रतीक्षा नगर. ओके, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विजुअली यू शुड कॉल फॉर, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल. देयर इज नथिंग ऑन दैट. So then this is the layout, Pratiksha Nagar Mada layout. ये पूरा layout है जिसमें you can see internal gardens are there, roads are there, and this is how then, now this is a classic example. This is a letter of offer issued by MADA. So whatever I am saying is substantiated by evidence on record. This is a letter issued by MADA offer. Plot area is 585.39 square meters. कल जरा ध्यान से सुनना है, this is very important. 585 square meters is your plot. 3 FSI हो गया तो 1755 square meter you are eligible. Okay. Out of that pro rata 3623. So pro rata varies from layout to layout. जिधर garden ज़्यादा है, road ज़्यादा है, उधर ज़्यादा pro rata मिलेगा compared to what is there. जैसे पवई में 60 square meter था, वही reclamation में 198 square meter है. सो 3600 हो गया तो टोटल FSI 5009. 585 स्क्वायर मीटर का परमिसेबल कितना हो गया? 5900. ऑलमोस्ट 10 times. 10 FSI हो गया. ओके, सो दिस प्रो रेटा बिल्डर में नॉट शो यू. जैसे कि TDR आपका नहीं बताएगा तो आपका रेक्लेमेशन में नहीं बताएगा अनलेस यू नो हाउ टू रीड इट व्हाट इज देयर इन फोटो. सो दिस इज द मैजिक ऑफ ओनिंग फ्लैट इन अ माडा entitlement. So 5900 is a square meter is there. ये मोतीलाल नगर का है pro rata. 4,17,000 square meter is only pro rata. Okay, 4,17,000 is that means almost 40 to 43 lakh square foot is a pro rata FSI given addition to 4 FSI. So there are 2,258 members. Divide that. 4117 into 2258, so you will get that figure of 185 square meters. So ये सब record भी माड़ा से ही मिलते हैं, हम कोई घर पे नहीं बनाते. You have to apply, if you are a माड़ा person, apply to them. I want the chart, the plan, the layout plan, and they will give you along with the pro rata written entitled. So you don't have to ask any opinion. जैसे कि ये layout plans आते हैं, 6-7 का set आता है, उसमें this is the buildings in that plot, number of buildings, number of members, and pro rata इसमें जैसे कि दिया है 59 point square meter to be added to each flat. ये पवई का layout है, तो this is the actual layouts I am showing you. Okay, so existing building built up area पे है 200, total आ गया 400, 40 people are there. So ऐसा built up area statement बनता है जो माड़ा बना के देता है. Similarly कार पार्किंग का भी इश्यू रहता है. तो कार पार्किंग का इफ़ इट इज़ लेस देन 45 स्क्वायर मीटर का फ्लैट रहेगा तो आपको 8 पे एक पार्किंग फ्री ऑफ चार्ज मिलते हैं. यू कैन बाय इट एंड FSI में कटा के बोल सकते हैं. सो
more than 45 to 60 तो 4 पे एक, ऐसा 2 पे एक, एंड इफ इट इज़ अबाउ 90 स्क्वायर मीटर का फ्लैट रहेगा, कम से कम 900 स्क्वायर फुट के ऊपर रहेगा, तो 1 पार्किंग इज़ कंपलसरी. सो अक्सर ये होता है कि मेरा घर 200 का है, 300 का है, 400 का है, बट आई नीड 1 कार. आप एरिया मेरा काट दो, लेकिन मुझे कार पार्किंग बनता है, क्योंकि अक्सर इट इज़ बिकम मोर ऑफ अ नेसेसिटी रादर देन अ लग्जरी. ओके, सो इट इज़ एवरीवन्स राइट टू आस्क, बट what policies are there we have to adhere to and follow. We cannot challenge that. वो करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हमें जो है उसके हिसाब से हमें चलना है. ओके, सो बेसिकली एंटाइटलमेंट जो रहता है कि आपका घर 100 का है, जिधर EWS है 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, इट इज़ कंसिडर्ड टू 27(8) एज द मिनिमम यू शुड गिव. 5% इंसेंटिव, प्रो रेटा इज़ 20. फॉर एग्जाम्पल उसका प्रो रेटा 20 था, तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ फ्लैट ऑफ 66.52. आपका घर कितना है? 229. आपको बनाने खुद के पैसे से बनाने जाओगे तो 716 मिलेगा, बिल्डर बनाएगा तो 500 देगा. सो दैट अंडरस्टैंडिंग एक टाइम हो जाएगा तो पीपल विल स्टॉप टेलिंग यू एंड स्टॉप टेलिंग यू नहीं 3600 मिलता है तो हमको 3000 मिलना चाहिए, 3.5 मिलना. बट इफ़ यू वर्कआउट द कॉम्प्लेक्सिटीज विल विच वी सी. सो बेसिकली देर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि आप पूरा बिल्डिंग बनाने जाओगे तो आपको स्क्वायर फुट कितना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट वी वर्कआउट. तो समझो ये जो प्रतीक्षा नगर का था तो उनको 8,500 में पड़ता था कॉस्ट कंप्लीट, बट आफ्टर गिविंग फ्री एरियाज द कॉस्ट गोज़ हाई टू 15,000. सो जिधर 25-30 हज़ार का भाव रहेगा तो 15,000 में पड़ेगा, तो बिल्डर खुशी खुशी करेगा काम. यही अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो दैट बिल्डर FSI ऑल्सो कम्स टू यू, विच वी विल टेक ड्यूरिंग द लास्ट सेशन. सो दिस वॉज अ पार्किंग एज आई एक्सप्लेन टू यू. So feasibility for housing societies under 33(7) is there where you are shown the setback area. Okay, so this is where the plans are seen. This is the complex part of it, where what is your road, what is your setback. So that is very important to understand कि मेरा रोड में कितना गया, मेरा एमिनिटीज़ में कितना गया, मेरा नेट प्लॉट कितना है. मेरा प्लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन am I entitled to that? Whether I was got that benefit or no. म्यूनसिपलिटी बोलेगा वो तो तुमने 30 साल पहले दे दिया हमको, लेकिन मुझे बेनिफिट तो नहीं दिया. सो देर आर कोर्ट केसेस ऑल्सो के वेयर कोर्ट हैज़ गिवन आफ्टर 37 years ऑल्सो के mere acquisition of the plot for road widening and just municipality on its own putting their name in the property card does not entitle or deny you the compensation. For a proper compensation, municipality has to do a registered document with you. Till then, it is in yours. Okay, so these are supported by court judgments के you cannot skip. अभी तुम 30 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए. Okay, so that protest has to be there and that documentation has to be followed. Okay, so once you get the net plot area, then you get how much is there. सब लोग आप cluster में जा रहे हो, सब लोग आपके साथ नहीं आ रहे, who are not getting affected or don't want to come, but still you are eligible for cluster. Then you get a net plot area. Then you are entitled. Once you cross 6,000 square meters, once you cross 6,000 meters in a suburb area, you are eligible for 4 FSI. Okay? उसमें म्यूनसिपलिटी का से आपको लेना है 0.5, TDR आपको लेना 0.9, तो ये होगा 2.4. 1.6 is what you have to purchase additional FSI under 3312A. In this case, we are saying 3312A. अभी रोड आप देखो 1241 गया, आपने नेट प्लॉट में से निकाल दिया, right? But what I have added, 1241 into 2, okay? So that additional area is given back to you in terms of whatever is deducted. Okay, so that again adds to it with an additional area. Then you come down, fungible FSI होता है, so you get a total building कितना बन सकता है, you get to know that. Okay, so yeah, yeah. Yeah, FSI available by purchase TDR, this one? Yes. FSI is not available under 33(7) scheme.
right? That is this 1.6. That is not available. But when you do standalone 33.7B में नहीं मिलेगा आपको. When you club two schemes, 33.7B with 33.12A, then you will get. Yeah. Yeah, road setback also. Okay. Sir, is for private land also? Yeah, all lands taken by municipality, private, public, जो भी होएगा, you are entitled for that. Okay. Then comes out के what is your carpet area. Okay. Then comes के what is your carpet area that you are using, existing. आप existing क्या FSI use कर रहे हो, वो हम पहला समझ लेना चाहिए और accept कर लेना चाहिए कि this carpet area is as per the previous building plans. उसमें balcony भी होगा तो हम वो accept करेंगे, right? But you cannot say I have मेरा area इतना, तेरा area इतना है, आप measurement भी कर लो, लेकिन plan से match होना चाहिए, okay? So once you get that, so in this case, what are we entitled to? So in this feasibility, I am showing that this society was entitled for 100%. 100% की मिलने के बाद भी उसको क्या मिलता है? What I am saying is this. Okay, if you see here, the revenue is 1462 crores. Cost is 1089. Profit after interest is 373. Interest is 83. But without interest it is 456 corpus. तो हमें 100% एरिया दिया, हमें कॉर्पस भी दिया, हमें रेंट भी दिया, उसके बाद भी उसको ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए डिसीजन है. तो इट इज़ 1.99 एडिशनल एरिया, दैट इज़ 100% एरिया. सो दिस इज हाउ कैलकुलेट. ओके, नाउ इफ दिस 3000, इफ आई जस्ट पंच 2000, तो प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा, हमारा कम हो जाएगा. So there is what leaves room for your negotiation that easily, you know. So here if you see that 100% was given, 7,050, 14,000 is given, okay. So when you do this 40% plus उसके ऊपर 35% है. So if you total this, it will come to 82%, but actually net आपको 7,000 का 14,000 मिल रहा है, तो here you are getting 100%, which is still viable for a builder. अगर अक्सर पीएमसी पहला बोलते जाड़ा मोटा लगा के बिल्डर को इतना करोड़ों रुपया इंटरेस्ट देना है, ओके, तो हमें सोचना है कि हमें कौन सा बिल्डर चाहिए जो गांव से पैसा लाके हमारा काम करने वाला है. तो इट इज़ फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं मेरा पैसा बैंक में रखूँगा, अगर मुझे उसमें 100 रुपया मिलेगा और मुझे इसमें 140 रुपया मिलेगा, तो मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ. बाकी उसकी मर्जी. हम तो चाहते थे 100% तेरे पैसे से कर, नहीं होता है तो बाहर से कर. तो इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इधर तेरे को 450 करोड़ प्रॉफिट मिलता है, 456 crores if you put all your money. If you don't want to put your money, you are still making 373 crores. इन्वेस्टमेंट उसका कितना है? 30% ऑफ. जाड़ा हिसाब है 30% बिल्डर पैसा डालता है, गाड़ी आगे चलती है. तो तुमने कितना पैसा डाला? 1000 करोड़ में तुमने डाला ही 300 करोड़, तुम्हें सामने 300 करोड़ मिल रहा है. प्रोजेक्ट के सामने इट में बी लेस. बट द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड विच एनी पीएमसी विल ऑलवेज ट्राई टू के उसको तो इतना इंटरेस्ट लगेगा ना, तो अगर उसको इंटरेस्ट लगाना है तो हम तेरे को क्यों दिए, और आर यू एलिजिबल ऑल्सो फॉर दैट लोन, इतना पैसा तेरे को लोन मिलेगा कि नहीं. तो इट इज़ वेरी इजी टू से नहीं उसका प्रॉफिट तो इतना है, उसको ब्याज भरना पड़ेगा इतना. No, not at all. That we should never allow to take loan on your property or anything. Okay, that will be suicidal. Huh? That will be a great case of honor killing. So there's a message in the group saying there's no voice in the live stream. Okay. नहीं उसमें नहीं, उसमें I'll just check up with someone. Yeah. स्टैंडर्ड मार्जिन कुछ रहता है किसका? बिल्डर कितना मार्जिन? सो ग्रॉस प्रॉफिट होता है. जैसे कि इसमें देखो 1000 करोड़ है, बराबर है. 1000 करोड़ के सामने उसको 400 करोड़ मिलता है, तो इट इज़ 40 फॉर द प्रोजेक्ट इट कम्स टू 45%. ओके, लेकिन वो डालता है कितना? 300 करोड़. 300 करोड़ पे उसको ब्याज देने के बाद भी 370 मिलता है, तो इट इज़ गुड 100%. उसका पैसा कितना लगता है? 300 करोड़. उस पर ऑलरेडी 300 करोड़ उसको मिलता है, तो वो राजी खुशी से करेगा. लेकिन हमको समझाने के लिए
क्या देखो 1000 करोड़ में तो खाली उसको 350 करोड़ ही मिलता है, तो विच इज़ नॉट द केस। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि कोई भी बिल्डर 30% से ज़्यादा डालेगा ही नहीं, तो लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट। कोई भी पूरा 1000 करोड़ रुपया रोकड़ा दे के नहीं घूमने वाला है कि मैं डालना। सेल्स होता है, लोन्स लेता है, सब रहता है, होता है, बट एटलीस्ट उसके खींचे से पहला 30% 35% निकलना चाहिए, तो ही प्रोजेक्ट में स्टेबिलिटी होएगा। ओके, पहले दिन से बोलेगा कि हाँ ये प्लॉट लो, ये लैंड लो, ये लो, बैंक को बोलेगा लोन दे दो मेरे को, तो दैट्स वाई मेनी प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल फॉर दैट ओनली। ओके, आई कम टू दैट। ओके, सो कारपेट एरिया है। नाउ दिस इज कॉल्ड रेरा कारपेट। 5% मोफा कारपेट से बढ़ जाता है, तो अक्सर बिल्डर आपको बोलेगा मैं आपको रेरा कारपेट बेचता हूँ। सो रेरा कारपेट का एक डेफिनेशन है जो हमको ऐसा लगता है कि रेरा एक्ट ने बनाया है तो वो सही रहेगा। आपका कैलकुलेशन गलत है। मेरा सिंपल कहना है कि अगर मोफा कारपेट का मतलब आप अपने घर में आपका कारपेट लगाएंगे तो आपको दर्जी बोलेगा इतना स्क्वायर फुट का आपका कारपेट लगा, तो दैट इज़ द एरिया यू आर यूजिंग। रेरा कारपेट इज सेइंग कि 2 दीवार के बीच की दीवार भी कारपेट है, तो एक्चुअल में इट इज़ नॉट राइट। तो इट इज़ गुड फॉर बिल्डर टू से 480 के बदले वो बोलेगा मैं आपको 508 स्क्वायर फुट दूंगा रेरा, बट आपको यूज़ करने को मिलेगा 480। सो ऑलवेज डिसाइड ऑन दैट ओनली व्हाट आई एम गेटिंग यूजेबल कारपेट, नो एरिया। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, तो बिल्डर भी पहले दिन से वो समझ के चलेगा। बट उसको बेचने के लिए भले रेरा कारपेट 5% ऐड करेगा, वी हैव नो इश्यू। ओके, सो अभी जब आपको मोफा एक्ट है उसके हिसाब से डेफिनेशन इज वॉट एवर यू आर यूजिंग। तो सिंपल भाषा में आपको समझाओगे, आप अपने घर में एक रूम में कारपेट लगाओगे, उसका मेजरमेंट आपको लगेगा कि 10 बाय 12 का कारपेट लगा, दैट इज़ योर कारपेट एरिया यू आर यूजिंग, वॉल टू वॉल। ओके सर, यहाँ पे फिर वॉल किस तरह से बना रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। वॉल सो वही बोल रहा हूँ, वॉल टू वॉल रहेगा। दैट कारपेट आई वॉन्ट, जो 6 इंच का दीवार बनाएगा कि 9 इंच का बनाएगा। अगर नया टेक्नोलॉजी से बनाएगा तो इंच कम हो जाएगा, बट मजबूती तो बढ़ता है। अभी तो कंस्ट्रक्शन आता है जिसमें बीम भी नहीं होता है, सीधा फ्लैट स्लैब भी लगता है। सो देर आर वेरियस इश्यूज विच कम विच आर देयर। सब आपका यूजेबल में बैल्कनी सब आता है। बैल्कनी में फंजिबल कवर हो गया। पहले क्या था, वाई डिड फंजिबल कम? बीएमसी बोलता था निश एरिया, फ्लावर बेड एरिया, ये एरिया वो एरिया सब फ्री ऑफ एफएसआई। दैट वाज कमिंग टू अराउंड 40%। तो बिल्डर को तो फ्री मिलता था, लेकिन आपको बेचता था फ्लावर बेड, निश, कारपेट। तो बीएमसी बोले कि हम भी उसमें भागीदार क्यों नहीं हुए। तो दिस इज आउ 35%, बाकी 35% फंजिबल का कोई आइडिया ही नहीं है, कि कुछ लॉजिक ही नहीं है कि भाई इतना करने के बाद 35% क्यों दे रहा है, तो हमको इतना मेहरबान क्यों है। तो बिल्डर पे मेहरबान थे, लेकिन वो बोले हम भी अब इसमें भागीदार बन जाएंगे, तो उसका हमको रेडी रेकनर के हिसाब से 25% प्रीमियम दो। आपको बैल्कनी चाहिए 10,000 फुट का, तो उसका रेडी रेकनर का रेट के हिसाब से 25% हमें पैसा दो। बाकी तो your existing plan should show that you are occupying with balcony and the area of the balcony has to be written. Okay? What is the difference between BMC area and carpet area? BMC plan will only show you what area you are using. That only we will consider. That is carpet area. They have built up area concept. Always the calculations are done in built up area. But when that built up area इंक्लूड्स द स्टेयरकेस, लिफ्ट एंड ऑल, बट आपका फ्लैट का ड्राइंग रहेगा, उसको आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको वो कारपेट एरिया मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज देयर। नाउ एक है कि आपका घर जो बनता है उसका एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, दूसरा आता है पोडियम पार्किंग जो होता है। पोडियम पार्किंग में स्लैब लगता है और कॉलम लगता है, तो वो कॉस्ट इज नॉट द सेम एज द फ्लैट कॉस्ट। सो वी हैव टू वेरी वेल सी दैट दी पीएमसी आपको ये सेग्रीगेट करके देता है कि नहीं। या तो पूरा टोटल कंस्ट्रक्शन पे 4,500 लगाएगा, 3,000 लगाएगा, 3,500 लगाएगा, बट यू हैव टू बाइफर्केट एंड अंडरस्टैंड
कि आपका एफएसआई के हिसाब से आपको 5,90,000 स्क्वायर फुट माल बनने वाला है इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स। उसका हम 4,500 रुपया भी पकड़ सकते हैं, 4,000 भी पकड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट द क्वालिटी। 3,000 में भी बनेगा, 3,500 में बनेगा, 4,000 में बनेगा। उसके लिए यू शुड हैव अ रिपोर्ट टू शो टू द बिल्डर कि हमारे हिसाब से ये बनाएगा तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा। तो हम भी थोड़ा दिमाग लगा के आपको बोल रहे हैं ऐसा, उसको जिस दिन समझ पड़ेगा तो वो उसी दिन से वो भी सीधा चलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज द लिफ्ट स्टेयरकेस जो होता है, स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबी, उसमें भी क्या लगता है, जो स्लैब लगता है, सीमेंट लगता है, वो रहता है, तो दैट इज़ 2,200। एंड दी पोडियम पार्किंग आजकल आप देखते हो 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, इट इज जस्ट कॉलम एंड ऑल, तो दैट कॉस्ट इज ओनली 2,000 रुपीज ऑफ स्क्वायर फीट। Okay, so it makes a lot of difference in terms of arriving at the total cost. Okay, पार्किंग का भी ये रहेगा, तो कुछ ना कुछ पार्किंग का अगर पजल पार्किंग लगाया या तो कुछ ना स्टैक पार्किंग भी लगाया तो दैट ऑल्सो कॉस्ट वी इंक्लूड। ओके, सो दिस गिव्स अस अ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 345। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 1,089 crores। कंस्ट्रक्शन को कितना पैसा लगता है? 345। बाकी का पैसा किधर लगता है? अप्रूवल्स आर देयर, प्रोफेशनल्स आर देयर, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कॉर्पस है, आपका रेंट है, तो फिर भी 45% गवर्नमेंट को जाता है। ओके, इसमें जो आपने लिफ्ट रूम और लॉबी वगैरह कवर किया है, हाँ, इसमें लिफ्ट का कॉस्ट कवर्ड है? दैट विल कम इन दिस 4,500। दैट आई हैव टेकन इन 4,500 लिफ्ट। ओके, या अ गुड कंस्ट्रक्शन विद अ गुड लिफ्ट will include 4,500. Okay. ये दिस पार्किंग इज फॉर ऑल द पार्किंग, पर पार्किंग कॉस्ट में दिया है ₹1,00,000 ऐसा। ओके, जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जिधर हो सकता है हम डालते हैं, जिधर नहीं हो सकता है वी कीप अ पेंडिंग, नहीं होगा तो। सो देन द मेन इज व्हाट, scrutiny fees, IOD deposit, debris deposit, development charges, additional development, additional cess, labor cess, staircase premium, ये सब we have to pay to the BMC. Okay. There is a provision also till September 2025 that इसका टोटल मार के भी म्यूनसिपालिटी बोलती है अभी 10% भरो, रेस्ट यू पे इन 4 इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स। So that support is also there to the builder, और self development करते तो आपको है। Okay, so it is a list of LUC charge, PAB charge, BMC charge, CFO charges, CFO, fire service charge, parking scrutiny, pest control, water connection, electric connection, कुछ ऐसा चीज़ है जो मैंने नहीं छोड़ा है कि जितना कॉस्ट लेना ही ले लो, that way, but दो है वो आपको भरना है। So these are the, then is the TDR cost, FSI premium cost, premium on sale fungible area. So I have given it is 50% of ready reckoner rate. Ready reckoner rate is very important to understand कि आपकी जगह का ready reckoner rate क्या है। जो बैंड्रा में 2,80,000 है, मे बी 64,000 in मसगांव, मे बी 75,000 somewhere else। तो उसके बेसिस पे कॉस्टिंग पूरा चेंज होता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में नॉट चेंज, वो अच्छा कंस्ट्रक्शन 4,500 ही रहता है, लेकिन म्यूनसिपलिटी का चार्जेस वो जगह का वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड होता है। सो देयर इज ऑलवेज किंतु परंतु चलता ही है उनका। सो रेंट इज़ 125 रुपीज़ फॉर 36 मंथ्स, दैट इज़ कैलकुलेटेड। शॉप सा देगा तो उसका रेंट होता है। TDR इज़ देयर, सो लॉट मोर हैज़ टू बी देयर इन टर्म्स ऑफ जो है। I will share certain charts with you which you will for understand. Corpus है, corpus has become our birthright now, so we want it. But the corpus का concept is what? That amount should be equal to 10 years of maintenance for your society, not for you. लेकिन बोले वो सोसाइटी आएंगी तभी हम भरेंगे ना, अभी तो हमारे को दे दो, कल सुबह क्या होगा मुझे क्या मालूम। So it is a very situation to be decided at your end, कि what you want to do.
या तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इट इज़ टैक्स फ्री। इसको अच्छा खूबसूरत वर्ड दिया है, हार्डशिप कॉम्पनसेशन टू यू। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स यू आर एंटाइटल टू। तो मांगने में क्या है, सिंपल थियरी हम मेरा है, पूछने में क्या है। वो तो ना बोलेगा, 3,000 बोलेगा तो 2,500 देगा या 2,000 देगा, है ना। सो दिस इज़ व्हाट ऑल ट्रेंड सेट हो गया है, उसको डिफ़िकल्ट है मुझे चेंज करना। मैं आपको नहीं बोल सकता नहीं कॉर्पस नहीं मांगना चाहिए, या तो कॉर्पस मांगो तो सोसाइटी में रखो, तो कोई तैयार नहीं होगा। बट दैट डिसीजन इज़ एंटायरली योर्स। उसमें हमें कुछ बोलना नहीं। कंसल्टेंट फीस आर देयर, लॉयर्स आर देयर, दिस इज़ द इंटरेस्ट पोर्शन। 83 करोड़ रुपीज़ उसको इंटरेस्ट लगेगा अगर वो खुद का पैसा लगाएगा, उसका इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया। आप समझे मेरी बात। तो बोरो खुद का पैसा लगाया, उसको मुझे 83 करोड़ मिलेगा, लेकिन मुझे इधर 300 करोड़ मिलता है तो मैं राजी खुशी से पैसा डालूंगा। ओके, समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी कुछ बोलेगे कल दे दो, बिल्डर बोलेगा अभी 10% दूंगा, खाली करेंगे तभी 20% दूंगा, बाकी मैं पोजेशन पे दूंगा। एटलीस्ट इतना देना चाहिए कि मैं घर लेने जाऊंगा रेंट पे, उधर मुझे डिपॉजिट लगेगा, उतना डिपॉजिट हैज़ टू कम एज अ कॉर्पस एडवांस पेमेंट, राइट। So PMC fees are there, then estimated GST is there. GST on your saleable component is also there, 5%. Okay, so that all comes as a cost. Contingency है, कुछ भी बोलो. So in project profit of margin, total project पे 41. Any corporate will take it with this margin. Any corporate will accept happily 35% तक भी accept कर लेंगे, उनके पैसे पे उसको 167% मिल रहा है। ओके, सो देर इज नथिंग। सो व्हेन you have a full understanding of this feasibility report which you are entitled to get from your society managing committee PMC, then you know, and when you talk to a developer तो तुमको फिर बोल नहीं सकता है कि नहीं मुझे पड़ता नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, इधर हाइट नहीं है, इधर वो नहीं है। ओके, जैसे कि रेक्लेमेशन एरिया में बिल्डर्स आर सेइंग उधर नया निकला है विंड फॉल, जैसे कि वो सेंटा क्रूज में आता है एयर फनल, इधर विंड फनल निकला है, हमको हाइट नहीं मिलता है। तो मतलब उधर 42 बिल्डिंग का तो प्लान पास हो गया है, 129 मीटर्स का फायर एनओसी मिला है बैंड स्टैंड पे, तो वो तो सवाल ही नहीं तुम्हारा, उधर विंड फॉल है ही नहीं। बट बोलने में उनको भी कोई हर्ज नहीं है, हमको भी सुनने का, लेकिन हमको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। So when you are empowered to understand certain things, grasp certain things, then you can take it further. Okay. So these are the basics. Some summary of office, society office मिलेगा 2% of the total built-up area you are entitled for free area, which can be society, gym, whatever you say. Okay. कुछ लोग का होता है स्विमिंग पूल हमको नहीं चाहिए, इट इज़ अ न्यूसेंस। बिल्डर बोलेगा मैं स्विमिंग पूल नहीं डालेगा, फैंसी नहीं डालेगा, 14 वाले पे जॉगिंग ट्रैक नहीं बनाएगा तो मेरा माल बिकेगा नहीं, तो मैं स्विमिंग पूल तो डालूंगा क्योंकि मुझे तो बेच के जाना है, भुगतना है तुमको। सो देर आर वेरियस इश्यूज इवन आफ्टर दैट, आफ्टर अराइविंग दैट टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरियस इश्यू कि ये बाबा गुड़ियों का खेल नहीं है, बट हमारी जान लगी है इसमें, हमारी पूंजी लगी है इसमें, तो हम उसको पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई शेयर दैट सी द नंबर ऑफ चार्जेस। पेनल्टी भी पहला क्लॉज है, जीएसटी भी है, रिकवरी शीट, डेफिशिएंसी चार्जेस। बिल्डिंग और कंपाउंड वॉल के बीच में आपको जगह छोड़ना है ओपन स्पेस के लिए, फॉर दैट द फायर ब्रिगेड कैन कम, टेक अ फुल राउंड एंड कम। ओके, लेकिन आपको वो भी जगह छोड़ना नहीं, आपको बेस एरिया बड़ा मांगता है तो पे नो चार्जेस, इतना पैसा भर, बिल्डिंग और छोटा कम कर दे दीवार से, कोई प्रॉब्लम, खाली एक साइड ज़्यादा छोड़ना, मेरा फायर ब्रिगेड जाएगा। सो ये सब ऐसा है।
जैसा चाहो ऐसा आपको खिलाएंगे। ये मांगता है पूरी दुकान खोल के बैठे हम, आ जाओ, मेनू कार्ड हमारा है, जो मांगता है ले लो। हाँ या पढ़ें। ये और एक काम जो आपने बोला साइड में फायर के लिए छोड़ना है, अगर बाजू वाली बिल्डिंग से हम एनओसी ले लें तो देन वी कैन गो क्लोज टू द वॉल। नो, यूडीसीपीआर में ऐसे कुछ है मेंशन? देखो होल आइडिया इज व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फायर एनओसी कि हम पैसा भर के भी छूट जाते हैं, लेकिन हम हमारी जान के साथ ही खेल रहे हैं। सो यू कैन नॉट से कि बाजू वाली एनओसी, बाजू आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड बाजू की बिल्डिंग से जा सकता है। यूडीसीपीआर में जो 2020 में आया है, दिस इज 2034 पहले आया है, उसके बाद आया है। अगर बाजू बाजू वाला बिल्डिंग प्रोविजन रख रहा है तो आपको वॉल तक जाने के लिए अलाउड है, आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा समझो आपको परमिशन दे दिया, आपने कर दिया, कल सुबह बाजू वाला खुद का कुछ कर दिया, बना दिया, आपका फायर ब्रिगेड तो नहीं आएगा। प्रैक्टिकल जो बोल रहा हूँ, आज दे दिया उसने, आपको फ्री में तो देगा नहीं, पैसा ही लेगा ना। सोसाइटी भी आपको मेहरबानी करने के लिए पैसे लेगी। कल सुबह उसने बोला टुमारो वी आर अंडरस्टैंडिंग, एमओयू का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो टुडे वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, टुमारो विल नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो सो इट इज़, हमें वो भी सोचना है। तो आई एम ऑलवेज बीइंग अ ट्रेंड वॉलंटियर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग में पहले जाता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर देखता हूँ। फर्स्ट फ्लोर अक्सर चोरी के हिसाब से ग्रिल बांधते हैं, लेकिन अगर उधर दादरे में आग लगेगा तो तुम फर्स्ट फ्लोर पे रह के भी तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो यू हैव टू प्लान दैट ग्रिल्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली। सो इट इज़ द होल आइडिया इज़ कि फायर ब्रिगेड जाके मेरी जान बचा सकता है। तो वो तो ऐसा है सर जी, फायर ब्रिगेड का मोटो है मुझे इसकी जान बचाना है, तो वो आपका क्या बाजू का बिल्डिंग भी तोड़ने का तो तोड़ के घुसेगा अंदर। उधर समझो शेड्स रहेगा उसका, कार पार्किंग अगर उसको मालूम है उसको बचाने के लिए मुझे करना है, आपको पूछेगा नहीं, वो तोड़ के घुस ही जाएगा, बिकॉज ही इज ट्रेंड ओनली टू सेव अ लाइफ। पोडियम इज फाइन, पोडियम इज अलाउड, ओके, पोडियम इज अलाउड वेयर, बट देयर ऑल्सो इट इज, सी ये सब है ना हमारी अच्छे के लिए कि हम सोचते हैं प्रोविजन, जैसे कि इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ टू से कि तुम कम जगह रखेंगे, पैसा भरो तो कम जगह भी रखो, बट मेरी जान को खतरा है कि नहीं, वी शुड इंश्योर दैट सेफ्टी रिपोर्ट कि वेदर आई एम कंफर्टेबल विद दैट और, क्योंकि ये करने से क्या, हमको हाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो इश्यू है कि जिधर हाइट का रिस्ट्रिक्शन है तो तुम बोलेंगे फैलाओ जाओ, जैसे कि सेंटा क्रूज में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो सेंटा क्रूज एरिया में आपको हाइट का प्रॉब्लम है तो हम वो भी माफ़ कर देंगे, उसका पैसा भी आधा लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, लेकिन आधा लेंगे। सो इट इज़ अपन आस टू डिसाइड कि व्हाट इज़ सेफ फॉर मी। नहीं, देर इज़ अ प्रोविजन इज़ देयर, इफ़ यू गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स के द होल आइडिया इज़ व्हाट, फायर एनओसी आपको एनओसी जब भी देगा व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड कि आई कैन गो एंड सेव वन लाइफ। आप कुछ भी प्लानिंग करो, कुछ भी करो, ही हैज़ टू सर्टिफाई एंड ही कैन नॉट सर्टिफाई पैसा लेके, ही हैज़ टू सी कि इफ इट डजंट गो देयर इज RTI सिटिंग ऑन माई बैक टू डू दैट। सो द होल आइडिया इज once that solution is arrived of how a life can be saved in the event of this, everything should be allowed. That fire lift is a new concept where high rise building, दो नॉर्मल के बाद आपको एक फायर लिफ्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कारण है कि जब भी आग लगता है तो फर्स्ट थिंग इज डन दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ, तो आपके सब लिफ्ट बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लिफ्ट, फायर लिफ्ट इज द ओनली लिफ्ट विच विल ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द होल आइडिया टू हैव अ, विच इज़ अ मस्ट। फायर स्टेयरकेस भी होता है, आप देखो पिक्चर में देखोगे न्यूयॉर्क में हर एक बिल्डिंग के ऊपर बाहर वो है स्टेयरकेस होएगा आपको, कि वो उतर के कभी भी जा सकता है। सो इट इज़ अ फॉरवर्ड थिंकिंग देन ऑल्सो, वाई नॉट नाउ। ओके, रेफ्यूजी एरिया इज, जिस दिन समझो आग लगा तो देर आर फ्लोर्स वेर यू कैन कम एंड अकोमोडेट योर सेल्फ। तो पहले था पूरा फ्लोर बोलते थे रेफ्यूजी फ्लोर, नाउ दे अलाउड हाफ।
तो ऐसे कि 6 माला 12 माला 18 माला कि यू कैन कम एंड स्टिल necessary help comes, but normally it is used for party. Yeah, certain height के बाद. party in our country. Yeah. What's the limit of It all depends. जैसे सेंटा क्रूज में 10 माला है, अभी धानुकरवाड़ी में 57 माला मेट्रो को लग के बन गया. So it all depends upon the funnel airport का. Okay. So this is so I'll just brief through. 2-3 दिन पहला आपने पॉलिसी जो आया था कि टू एक्टिवेट दी सेल्फ डेवलपमेंट का, जो मैं लेटर ऑन लूँगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्किप्ड आउट द टाइम ऑन दैट. सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज द 79A guidelines, what precaution to take for builders, understand the feasibility. Okay. So because then we will go to next session, which is very important for us to understand, which will override whatever I have said in terms of what all precautions we will take. And so is it clear so far? You all have understood FSI feasibility? Can we get a physical copy of this? Soft copy. Are you sharing PPT? I'll share everything. मुझे छुपाना कुछ भी नहीं है. My mission is to educate you all. Okay. It is available on Android. So जितने आपको जानकारी मिलेगा, see because it is come within from my family only. My father in Bandra 69, he built 160 flats, gave everyone cost to cost. So that is also in there in me. कि it is knowledge acquire किया वो किया, it is payback time, कुछ तो करो society के लिए, something of that. So sharing knowledge is the cheapest, right? उससे knowledge double ही होगा. मेरे जेब से रुपया जाएगा, आपके रुपये में जाएगा तो रुपया एक ही रहेगा. when मेरा नॉलेज आपको जाएगा तो डबल हो गया. ऐसा नहीं है, बट यू शुड हैव द क्वेस्ट कि आई विल ऑलवेज कीप लर्निंग. मैं हमेशा कोई होशियार नहीं हूँ, मैं भी सीख के आया नहीं हूँ, तो मैं आज आएगा तो ज़रूर आपसे कुछ सीख के ही जाऊँगा. आप भले मेरे से कितना भी सीखेंगे, लेकिन आपसे मैं ज़रूर सीख के जाऊँगा. दैट शुड बी द माइंड सेट. ओके. क्योंकि आज देखो टेक्नोलॉजी, हम आगे सेशन में देखेंगे, रातों रात टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो अच्छे से अच्छे आदमी लोग जॉबलेस हो जाते हैं. ओके. सो यू डोंट. Pardon? Cluster. Cluster is nothing. If you have crossed the cluster, तो आपको नॉर्मली समझो माड़ा में 3 FSI मिलता है, you get 1 FSI एक्स्ट्रा. ओके. सो 1 एक्स्ट्रा FSI मिलने से आपका इक्वेशन ऑफ गेटिंग मोर एरिया इंक्रीजेस. 4 FSI. Nothing you have to give. Your entitlement is the area of the plot. आप सबब्स में है, 6000 मीटर है, 2-3 सोसाइटी मिलके भी 6000 मीटर क्रॉस किया तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर क्लस्टर. माड़ा में भी 33.5 है. ओनली क्लस्टर का क्या, इट हैज़ टू गो टू मंत्रालय फॉर अप्रूवल. तो रिसेंटली व्हेन आई मेट CEO ऑफ माड़ा, ही सेड वो 33.5 में भी अगर यू आर एलिजिबल फॉर क्लस्टर, आपको 33.5 में 4 FSI करके देता, उधर जाने का जरूर नहीं. तो एक एक्स्ट्रा माड़ा में रहता है कि जैसे कि पेपर में भी आया था, 4 FSI में 30% माड़ा शेयर स्टेक will take that. So that is still but 0.7 you are getting extra. Okay. So this was the main understanding the process, and now we will go to the next session. We are already late. I think much time I have taken, but we are still there. इस रात की सुबह नहीं है, अगर आप साथ देंगे तो we will explain everything. So now नहीं, we have Tarun ji's session. So that was it, and I would like to now invite Mr. Tarun Ghia ji for his session. And जितना तरुण जी के लिए कहूँ उतना मुझे कम है, जो मैंने उनसे समझा सीखा. So proper and a good education, proper documentation is the key to your redevelopment, because that is the only document you are having when you go out. Okay. So he is an expert in RERA laws, expert in GST, expert in income tax, and expert in proper documentation. इनका document बनेगा तो I can go ahead.
So, Tarunji, they want 5 minutes break. Okay, so I will take 5 minutes break. Tarunji, I welcome you on board. कुछ तो लोग बात करेंगे. Where are you organizing? So we will have a wonderful session now of Sri Tarun Gia ji, and his expertise on documentation. After the session, you will say that he is the right man to take guidance and understand his in-depth knowledge of the subject matter. मेन है सब्जेक्ट मैटर तो है, सब है, लेकिन जो एनालिसिस जो होता है, एनालिटिकल पावर, एक सिचुएशन को कैसा एनालिटिक करते हैं, उनसे हम समझना है. जैसे हम हमेशा हमारे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, लेकिन रेयरली हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. जैसे कि ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर और ग्लास इज़ हाफ वाटर. ओके, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले के नज़रिए से भी तो देखना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आई एम ओनली राइट, कि मुझे जो सुनना है वही मुझे सुनना लगे, वही वो लोग मुझे अच्छे लगे. सो वी आर मेकिंग दिस अटेम्प्ट एंड पीपीटी इज़ रेडी. हाँ, क्या regarding MHADA properties, okay, once you do the conveyance, it is very important to understand, once you do the conveyance is done only of the building. Is everyone with me? MHADA layout में कभी भी MHADA land आपको कभी भी नहीं देगा, खाली देगा तो आपको बिल्डिंग देगा. सो ये अंडरस्टैंड कर लो कि हमने कन्वेंस करा लिया तो आपने खाली बिल्डिंग का कन्वेंस किया, लैंड का नहीं. और रीडेवलपमेंट करो या नहीं करो, कन्वेंस MHADA की बिल्डिंग का करना ज़रूरी है. कल सुबह कुछ बिल्डिंग का होता है तो इट इज़ इन योर हैंड्स. अदरवाइज़ आप फिर से MHADA के चुंगल में जाएंगे, फिर वो जैसा होगा तभी करेंगे ऐसा. तो ये इम्पोर्टेंट है. प्लस कन्वेंस होने के बाद ट्रांसफर्स यू कैन डू विद द मैनेजिंग कमेटी. अभी आपको हर ट्रांसफ़र के लिए MHADA भागना है इंडिविजुअल को, बट आफ्टर कन्वेंस द सोसाइटी कैन डू द इंटरनल ट्रांसफर्स. दूसरा रीडेवलपमेंट भी, जैसे कि बहुत जन के प्रॉपर्टीज़ वो रहता है बैंक फाइनेंस. ओके, सो जब आपका रीडेवलपमेंट होता है, बिल्डिंग टूटता है, तो बिल्डिंग बैंक का सिक्योरिटी ज़ीरो हो जाता है. सो देर इज़ अ कोर्ट ऑर्डर दैट द PAAA अग्रीमेंट जो आप साइन करोगे, दैट ओरिजिनल यू हैव टू जस्ट सबमिट विथ योर बैंक एंड द लोन कंटिन्यूज एंड द सिक्योरिटी इज़ एक्सेप्टेड. सो यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक, क्योंकि बैंक के पास आप जाओगे डॉक्यूमेंट देखने तो काफ़ी टाइम निकलता है. सो उसका सोल्यूशन इज़ देयर, द बिफोर यू लीव यू आर गोइंग टू साइन द AAA अग्रीमेंट, राइट. सो दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू डिपॉजिट विद द बैंक. ओके, ओके.